لیتے ہیں. تو پھر سب میرے خیال آپ ہی شروع کریں گے. جی بالکل سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میرا نام عاطف عزیز ہے. میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر ہوں لاس اینجلس سے. آج کا جو ویبینار ہم نے رکھا ہے یہ ہے جی کھجور کی برآمدات واقع امریکہ میں اسپیشلی فریش ڈیٹس اور جو کھجوریں ہمارے پروسیس کے لیے آتی ہیں. چونکہ ریسنٹلی ہمیں ڈائریکشنز بھی آئی تھی اور ہم مارکیٹ ایکسیس کے لیے مختلف پارٹس کے لیے کام بھی کر رہے تھے. تو دس از دا بیک گراؤنڈ آف دس ویبینار. تو سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا جبار میمن صاحب, عبدالجبار میمن صاحب جو کونسل جنرل ہیں پاکستان کے لاس اینجلس میں, اس طرح وہ اپنے اوپننگ ریمارکس دیجیے فار دی پارٹیسپینٹ سر. جبار میمن صاحب سر. جی السلام علیکم. تھینک یو عاطف فار یور انٹروڈکشن. اور میں سارے پارٹیسپینٹس کو, ٹی ڈی اے پی کے آفیشلس کو, ہمارے جو آج کے پینلسٹ ہیں اسپیکرز, ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارا جو ورکنگ سٹائل ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا ہے. اب ہم زیادہ تر زوم پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اور ود ان یو ایس اے بھی ایز ویل ایز انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمیں اس موڈ کو یوز کر کے وہ جو ڈسٹنسز ہیں ان کو ریڈیوس کرتے ہیں. آپ لوگ سب کو پتہ ہے, آپ بزنس مین بھی ہیں, ٹی ڈی اے پی کے آفیشلز بھی نو, میرے کمرشل سیکشن کے آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے. نہ کہ اس کو ڈیفیسٹ کو جو انفارچونیٹلی انکریز ہو گیا ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے. ظاہر ہے یو ایس اے جیسے ملک میں, یورپ میں بڑے بڑے جو چینز تھے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹورز وہ یا بینکرپسی ڈکلیئر کر گئے یا بند ہو چکے ہیں, یا ان کی جو سیلز ہیں وہ ڈکریز ہو گئی ہیں. تو پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کی انٹرنیشنل ٹریڈ جو تھی, ایکسپورٹس تھیں, وہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی تھی, اس میں جو ہے وہ کمی آنا اور پاکستان کی اکانومی کو ڈیفینیٹلی اس نے سیریسلی افیکٹ کرنا ہے. تو ہم لوگ سب جو ہیں دنیا میں جتنے بھی مشنز ہیں, ہمارے کمرشل سیکشنز ہیں منسٹری آف کامرس پاکستان میں اور منسٹریز جو الائیڈ ہیں, وہ ساری کی ساری مل کے اب ایک لحاظ سے جہاد کر رہے ہیں. اور کوئی ایسا چھوٹا بھی ہم اپرچونٹی نہیں لوز کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنے اس گیپ کو پورا کر سکیں. ہم نے بڑی محنت کی ہے. ہم نے یہاں سے امیزون کو ہم الحمدللہ پاکستان میں لے گئے ہیں, ای کامرس میں, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو, کہ لوگ اپنی ایکسپورٹس, کیونکہ اب بزنس آن لائن شفٹ ہو رہا ہے فرام جو, تو وہ اس کی جانے سے بھی پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ایک بڑا ریولوشن آئے گا. یہ جو ڈیٹس کا آئیڈیا تھا, یہ کچھ دن پہلے مجھ سے میرے کمرشل کاؤنسلر نے ڈسکس کیا کہ سر ڈیٹس میں ہمارے پاس اسکوپ ہے, اگر پاکستان سے ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں امریکہ میں. تو یعنی کہ یہ نہیں میں کہتا کہ ڈیٹس کی ایکسپورٹ اگر سکسیزفلی ہم مینیج کر گئے یا اس کا والیوم بڑھا گئے تو ہمارے جو ہے وہ یعنی کہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ کوئی میٹ کر سکیں گے. لیکن پھر بھی وہ قطرہ قطرہ دریا والی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی انڈیورس جو ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ایفرٹس جو ہوتی ہیں, وہ بھی یعنی کہ بڑا کام کرتی ہیں آپ کے مقصد کے قریب پہنچنے کے لیے. تو آج کے جو میں سمجھتا ہوں پینلسٹ ہیں, ہم ڈیٹس میں خود سندھ انٹیریئر سے تعلق رکھتا ہوں, خیرپور کے ایریا میں ڈیٹس کی کلٹیویشن, بلوچستان کے ایریاز میں. تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس کوالٹی ڈیٹس پروڈیوس ہوتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں یا جو ٹریڈ کے جو کچھ نٹی گٹیز یا پروسیجرز میں, اس میں تھوڑا سا ہم کمزور ہونے کی وجہ سے ہم یورپ یا امریکہ جیسے ملکوں میں اپنی جو ڈیٹس ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آج کے پینلسٹ اور ٹی ڈی اے پی کی یہ کوشش, میرے ٹریڈ سیکشن کے مسٹر عاطف عزیز کی یہ کوشش, مجھے یقین ہے کہ آج کافی لوگوں کے, کافی ایکسپورٹرز کے جو اس میں جو آج پارٹیسپنٹس ہیں یا جو گروئرز ہیں, ان کے کافی کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے اور وہ اس پری ریکوزٹس کو پورا کریں گے. تو ڈیٹس ہم پاکستان سے انشاءاللہ تعالی ادھر یہاں پہ ویسٹ کوسٹ پہ بھی اور انٹائر یو ایس اے میں ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے, یا جو ہے اس سے بھی زیادہ ہم انشاءاللہ کر پائیں گے.
तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इट्स अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock इन द लॉस एंजलिस, और आप लोग के भी वहाँ शाम के 7 बजे होंगे। आप लोग TDAP वाले भी यानी कि ऑफिस आवर्स के बाद बैठे हुए हैं, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। TDAP का भी शुक्रगुजार हूँ। आतिफ अजीज की कोशिश को सराहता हूँ, और हमारे पैनलिस्ट की स्पीचेस के बाद इंशाल्लाह ताला आज काफ़ी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हम एक डायरेक्शन की तरफ जाएंगे जहां से ये एक बड़ी वैल्यू ऐड करेगी डेट्स की एक्सपोर्ट अमेरिका में पाकिस्तान के ट्रेड को डेफिसिट को मीट करने में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आजम कदीर साहब जो हमारे मेन स्पीकर्स हैं वहीद साहब के अलावा, सर आजम कदीर साहब का मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। ये यूएसए में स्पेशली ईस्ट कोस्ट साइड पर पाकिस्तानी अमेरिकन है, और जो पिछले 30 साल से पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली दी फूड प्रोडक्ट्स, राइस, खजूर एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, और माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार, बहुत नॉलेजेबल है। और जब ये डेट्स का असाइनमेंट आया तो इनसे मैं गाहे बगाहे जो प्रैक्टिकल ट्रेड के हवाले से जो भी टिप्स होते हैं, जो ट्रिक्स होते हैं, वो इनसे मैं सीखता गया, पूछता गया, और मेन आइडिया सर से ही डिस्कस करके आजम साहब से आज का ये वेबिनार हमने होस्ट किया, जिसमें हमने यही इनसे डिस्कस किया कि क्या वो चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव करें सप्लाई साइड पे, जिसकी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की डेट्स की, स्पेशली फ्रेश डेट्स जो कि मोर वैल्यू, डॉलर वैल्यू यहाँ से फेच कर सकता है। तो ब्रीफली आजम साहब की इंट्रोडक्शन के बाद आई रिक्वेस्ट के आजम कदीर साहब जो है हमारे सर, वो काइंडली आप सारा अपना तजुर्बा शेयर कीजिए पार्टिसिपेंट्स के साथ। ओवर टू आजम कदीर साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो खजूरों का सिलसिला है, मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई आतिफ साहब, वो आपके पास है या किसके पास है? जी सर वो TDAP के पास है, वो अली अगर उसको रन शुरू कर दें अली, वो प्रेजेंटेशन जो है। बेसिक हमारी प्रॉब्लम है वो बेसिकली अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, फार्मर से शुरू होती है। नंबर 1 जो हमारे प्लांट्स हैं वो उनकी जो स्पेस है बहुत थोड़ी है, जिसकी वजह से उनको सही सनलाइट नहीं मिलती और खजूरें सही नहीं होती। उसके बाद वहाँ पे SO2 लगाया जाता है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, हम उसको रॉ हार्वेस्ट करते हैं। अगर हम उसको और दूसरा उसके बाद जो हमारा जो ड्राइंग सिस्टम है ये बहुत ही ख़राब है। तो अगर हम इसको पैसे लगाएं और अपने फार्मर को, हमारे पास हर तरह की चीज़ें हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अपने फार्मर को ट्रेन नहीं कर पा रहे। अगर हम उनको ट्रेन करते हैं, और जो हमारी खजूर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और इसको ना सिर्फ USA में कहीं और भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इसमें 3-4 तस्वीरें जो थी वो पाकिस्तानी स्टाइल की थी। उसके बाद को जो US कैलिफोर्निया में होती हैं कि किस तरह करना चाहिए, अगर उसको हम करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और उससे जो है जब हम ड्राइंग करते हैं, जाहिर है कि हम हाईवे के आसपास करते हैं, और जितनी डस्ट होती है उसके ऊपर आती है, तो उसको साफ करना इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और उसके साथ साथ जो ऑयल लगाते हैं, ऑयल जो है हमें नहीं पता कि जो फार्मर है वो कौन सा तेल लगाता है, पीनट्स ऑयल लगाता है या वेजिटेबल ऑयल लगाता है। उसकी वजह से भी हमारी जो फ्रूट है वो अच्छा नहीं होता। तो ये चंद एक बेसिक चीज़ें हैं कि जो ये हमारी शक्कर की खजूरें हैं। आप देखें ये नीचे गिरी हुई हैं, अगर यही नीचे ना गिरे तो ये कम से कम 10 या 15% जो वेस्टेज हो रही है ये बचती है, और हमारी प्राइसेस इससे कम हो सकती हैं। हाँ, अब ये जो खजूर उतारी गई है देखें, इससे क्या है, इसका जो कैप है वो उतर जाता है, चाहे 5% का हो या 10% का हो। जब उसका कैप उतर जाता है उसमें फंगस आ जाता है। जब फंगस आ जाता है तो नेचुरली जब इसको मैनुअली ग्रेडिंग की जाती है तो उसको निकालना एक तो मुश्किल होता है। अगर निकाल भी लेते हैं
اس کی جو ٹیسٹ ہے اگر کچھ رہ جاتی ہیں اس کا ٹیسٹ میں فرق آتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھیں جو ہمارا ڈرائنگ سٹائل ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہم اس کے بولتے ساتھ رہیے گا ساتھ سر, آپ کی آواز آ رہی ہے, بولتے رہے سر. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں جو فارمر ہیں جو لیبر کام کر رہی ہے ان کے سینیٹیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے. جب سینیٹیشن کا انتظام نہیں ہوگا نیچرلی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو مائنر, لیکن اگر ان کے اوپر عمل کیا ان کو بہتر کیا جائے تو ہماری کھجور جو ہے یہ بہت اچھی ہو سکتی ہے. میں ایک سیمینار دیکھا تھا, میچ دیکھی تھی جس میں میرا ارلی 2000 میں تھی, جس میں اتنی اچھی کھجور میں نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی جو بلوچستان کی تھی. تو اگر یہی کھجور جو ہے درخت کے اوپر پک کے اس کو ڈائریکٹلی پیکنگ ہاؤس میں لایا جائے تو یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. آگے والی جو ہے یہ ہمیں اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے ڈرائر وغیرہ لگائیں, پھر ہمیں جو ہے کچھ کرنا چاہیے کہ ان سائڈ بلڈنگ کے اندر یہ چیزیں ڈرائی کی جائیں تاکہ جو باہر سے مٹی آتی ہے وہ ان کے اوپر نہ لگے. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہر برانچ کو کور کیا جائے, اس کو پراپرلی آکسیجن مل رہی ہے. اب یہ دیکھیں اب ہمارے جو درخت ہیں ان کا فاصلہ تھوڑا ہے, ان کا زیادہ ہے, اور ان کو چاروں طرف سے اچھی سورج لگ رہا ہے. جب سورج لگے گا تو اس کی جو کھجور ہے اور موٹی ہو جائے گی. جب کھجور موٹی ہوگی ڈیفینیٹلی اس کا ویٹ زیادہ ہوگا اور اس میں جو ہے زمیندار کا فائدہ ہے, اور ڈیفینیٹلی جو ویسٹیج ہے وہ نہیں ہے. اب یہ پورے کا پورا وہ کاٹ رہے ہیں, جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ اوپر جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی برانچ کو نیچے پھینکتا ہے, تو اس میں 2, 4, 10% کھجور ڈیمیج ہو جاتی ہے, اور یہ پورے کی پوری جو برانچ ہے اس کو اتار کے نیچے لے کر آتے ہیں. تو اس سے ان کی ایک تو ڈیمیج, اور جب درخت کے اوپر کوئی بھی فروٹ پکتا ہے اس کا ٹیسٹ نیچرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آگے والی جو ہے تو یہ 2-4 چیزیں جو میں نے پہلے ہی ڈسکس کی ہیں کہ ان کو کور کرنا ہے. جب کاٹیں ان مچور کھجور کو کاٹیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے, اور جو تیل ہے اگر تیل ہم نہیں لگاتے تو اٹس ویری گڈ. اور جو ہے 10 یا 15% کھجور ہوتی ہے جو ان میچور ہے, اس کے لیے اگر ہم ڈی ہائیڈریٹ ناٹ کے ڈرائر کے, جو گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ نے کچھ پیسے لگائے تھے یو ایس ایڈ کی طرف سے, وہ بیسکلی انہوں نے جو ہے نمبر 2 سٹائل انفارچونیٹلی ڈرائر بنائے تھے جو انہوں نے فیصل آباد سے بنوائے تھے. اٹ واز ناٹ گڈ تھنگ. اگر وہ اچھے ہوتے تو ڈیفینیٹلی اس میں امپروومنٹ آ سکتی تھی. اس کو سم ہاؤ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فارمرز جو ہیں, ہمارے پاس بہت بڑے بڑے فارمرز ہیں جو کر سکتے ہیں, لیکن وہی کہ اگر پیسے لگائیں گے تو پھر ہے. تو جو ہماری بیسک پرابلم یہی ہے کہ مائکرو کی پرابلم آتی ہے. اس کے لیے کیا ہے, اگر ہم تھوڑا سے باتھ روم وغیرہ سوپ وغیرہ ان کو دیں گے, چائلڈ لیبر ہے, چائلڈ لیبر تو کور ہو جاتی ہے, لیکن جو اس کو چیزیں ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس فیصل آباد میں ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہو. آگے
ہاں جی، ہاں یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو ہر درخت کے سپیس زیادہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے جب سپیس زیادہ ہوگی فروٹ بڑا ہوگا, اس کی جو سویٹنس ہے وہ بھی اچھی ہوگی, ہیلڈ بھی انکریز ہوگی, اور جو ہے ریڈیوس نیڈ ہوا تو جو پانی کا مجھے نہیں پتا کہ کتنا لگ رہا ہے, لیکن جو ہم پیسٹیسائڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم بہت سے پیسٹیسائڈ ہیں جو کھجور کے لیے مناسب نامناسب ہیں, لیکن وہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو پیسٹیسائڈ بیچنے والا ہے وہ صرف اپنی جیب کو دیکھ رہا ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں, چند سال پہلے ہمیں امریکہ میں جو سیلا رائس ہے اس میں پرابلم آئی تھی. وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے زمینداروں کو ایسے پیسٹیسائڈ بیچے جو مینگو کے اوپر چلتے ہیں, اور جب انہوں نے مینگو والا اسپرے چاول کے اوپر کیا تو ظاہر ہے جب ٹیسٹنگ ہوگی تو ایسے پیسٹیسائڈ جو الاؤ نہیں ہیں وہ آئیں گے تو وہ نیچرلی ہمارے لیے پرابلم ہے. تو کھجور جو ہے اس میں SO2 کچھ بچوں کو یا بڑوں کو سلفر سے بھی جو ہے گندک جو ہے اس سے الرجی ہے, خاص کر بہت سے آج کل جو ہے بچوں کو پینٹس یا کچھ اور چیزوں سے کافی الرجی ہے, وہ مر بھی سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر بیچ میں جو کھجور آتی ہے اس میں ہمیشہ ایک طرح کا تیل نہیں لگا ہوتا, کبھی ویجیٹیبل ہے, کبھی سن فلاور آئل ہے, کبھی کوئی لگا ہوا ہے. وہ صرف اسی لیے لگا ہوا ہے کہ جو ہمارے بیچارے زمیندار ہیں, کسان ہیں, ان کو جو بیچنے والے ہیں وہ صرف اپنے پیسے کمانے کے چکر میں ہے کہ چلو جی جو بھی آتا ہے ان کو دے دیں. اب جو سوشل رسپانسبلٹی ہے بیسکلی جو ہے کہ باتھ روم کے لیے ہے یا گلوز وغیرہ ہیں وہ ہونے چاہیے ان سب کے لیے. اس کے لیے کیا نام ہے آپ کے مائکرو یا دوسری چیزوں کو کور کرنے کے لیے. تو اگر آگے ہے کچھ یہ آخری والی ہے یہ آخری سلائڈ تھی اپنا عالم صاحب. ٹھیک, اچھا تو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ میرے خیال میں پاکستان میں ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, اس کو اگر صحیح یوٹیلائز کیا جائے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے, چاہے چاول ہے چاہے کھجور ہے, اور ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں فارمر لیول پہ کام کرنا پڑے گا, تبھی جا کر ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. بیچنا اتنا کمال نہیں ہے کہ جتنا اس کو پریکیورمنٹ اور اس کو پراپرلی گروئنگ کرنا ہے. پوری دنیا نیچرل کی طرف جا رہی ہے اور ہم جو ہے جی ایم او کی طرف یا پرانے اسٹائل پہ چل رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے جی جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. اب زمیندار کہتا ہے جی میرے پاس 20 ٹن حاضر صاحب آپ میوٹ ہو گئے سر, اپنا مائک آن کر لیجیے گا. جی سوری کہاں پہ تھا میں؟ آپ ایکسپورٹرز کی بات کرے تھے. ہاں جی میں کہہ رہا تھا کہ ایکسپورٹ کرنا آسان ہے لیکن اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے کہ انٹرنیٹ مارکیٹ اتنی زیادہ کمپیٹیٹو ہو رہی ہے. ٹونیجیا ہے, تنزانی ہے, وہ سارے بعد میں آ کے ہم سے آگے گزر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے فارمنگ لیول کے اوپر کام کیا ہے اور ہم فارمنگ لیول پہ کام نہیں کر رہے. جو آپ کا تجربہ رہا ہے یو ایس کے اندر پاکستانی کھجوریں امپورٹ کرتے کا, وہ سر پارٹیسپینٹ کے ساتھ شیئر کیجیے گا. تو پاکستان کی جو کھجوریں بیسکلی آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں انڈسٹریل یوسیج کے لیے, لیکن جو ہماری کھجور ہے اس کو پیکنگ کے لیے یا ریڈی ٹو ایٹ کے لیے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ اس کی جو ڈرائنگ ہے وہ درخت کے اوپر ہو اور اس کو تیل سے بچایا جائے
اور اس کو جو ہے پراپرلی جو اسٹینڈرڈ کے ساتھ اس کو پیک رکھا جائے. جو طریقہ ہمارا ہے ابھی جب ہم اس کو زمین پہ ڈالتے ہیں کچی کھجور کو اور جس صفوں کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ ویسے پھس جاتی ہے, اور جب پھستی ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو سکن ہے, کیونکہ جو اس کے اندر جو پانی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, جب دھوپ لگاتے ہیں تو جلدی پکانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی سکن جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے. جو جب سکن پھٹ جاتی ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں رہتا. ٹھیک. اعظم صاحب یہ کویسچن اور آنسر سیشن ہم اینڈ آف دا سیشن پہ لیں گے. اب میں ریکویسٹ کروں گا وحید صاحب کو جو پیٹرن ان چیف ہیں پاکستان فوڈ اینڈ ویجیٹیبل سپورٹرز ایسوسی ایشن کے سر اور شیئر کیجیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ کونسل جنرل صاحب کا اور عاطف عزیز صاحب کا کہ انہوں نے یہ جو ویبنار رکھا ہے یا آج کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ تو کارپوریٹ نے ہمیں میں کہوں گا چیلنجز تو ہے مگر اپارچونیٹی بھی بناتی ہے کارپوریٹ نے. ہم ہمیشہ کارپوریٹ کو اپارچونیٹی کی طرف دیکھیں کہ ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ دنیا چینج ہو گئی ہے, جس طریقے سے ہم ابھی ویبنار کر رہے ہیں یہ تو ہمارا ٹرینڈ ہی نہیں تھا. اگر ہم اپنے کانسلیٹ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور یہ قریب جتنا ہوئیں گے اتنا ہم اپنے بزنس کو ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں گے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے جو ابھی ویبنار کیا گیا لاس اینجلس سے, تو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو. اور اعظم قدیر صاحب کا میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ایسیڈ ہیں, امریکہ میں 30 سال سے رہ رہے ہیں اور ان کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت قابل وہ ہوگا. اور ان کے جو بڑے ویلڈ پوائنٹس تھے جو انہوں نے بات کی. اب میں شروع کرتا ہوں کھجور کے اوپر. بات یہ کہ پاکستان کی کھجور جو ہے, پہلے میں گلوبل ڈیٹس کی ایکسپورٹ کی بات کرتا ہوں. دنیا کی ایکسپورٹ کتنی ہے کھجور کی؟ 1.5 بلین ڈالر کی کھجور کی ایکسپورٹ ہے پوری دنیا کے اندر. اور جو پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے 2019-20 کی وہ ہے 72 ملین ڈالر کی, جس کے اندر ہمارے 72 بلینس اور 1.5 بلین دنیا کے لیے ایکسپورٹ ہو رہی ہے. بات ہے کہ ہم جو دنیا کے 5ویں نمبر پہ پروڈیوسنگ کنٹری ہے اور 300 جو کہا جاتا ہے کہ 300 ورائٹیز ہیں اور 5.5 لاکھ ٹن جو ہے ہماری ٹوٹل پروڈکشن ہے پاکستان کی. تو ایک کافی ہینڈسم اماؤنٹ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم 5 لاکھ پروڈیوسر بھی ہے اور ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر میں کہوں گا اس کو, کوئی بڑا والیوم نہیں. 32 ملین از نتھنگ, یہ پینٹس ہیں. بات ہے کہ ہمیں کیا اسٹیپ لینا پڑے گا, کیا ہمیں کرنا پڑے گا, کیا ہمارے مسئلے ہیں, کس طریقے سے اس کو ہم حل کریں گے. اچھا بات یہ نہیں کہ یہ کھجور کے مسئلے ہیں. ہم نے اپنا ویژن بنایا ہارٹیکلچر ویژن 2030 جو ہم نے رزاق داؤ صاحب کو بھی دیے ہیں, سی او کو بھی ہم نے ویژن دیا, 10 سال کا روڈ میپ دیا ہے, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم, جس کے اندر ہم نے ڈیٹس کے اندر بھی کنسلٹیشن کی, گروور سے بھی کی, ہم نے ایکسپورٹر سے بھی کی کہ بھائی مسئلہ کیا ہے کہ کھجور کی ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی. جب ہم فگر لیتے ہیں 2019-20 کی, اگر ہم ٹنوں میں لیں تو 70,000 ٹن ہماری ایکسپورٹ ہوئی ہے. اگر میں یہ 2017-18 میں جاؤں تو 1,40,000 ٹن ہماری ایکسپورٹ تھی ڈرائی کی, اور فریش کی 18,000, تو ٹوٹل ملا کے 1,60,000 کے قریب تھی, مگر ابھی ڈکلائن ہوئی. اس کی مین وجہ ہے کہ وہ انڈیا سے جو ڈیوٹی اسٹرکچر ہے 200% انکریز ہو گیا ہے, تو نہ جانے کے برابر ہو گئی ایکسپورٹ, اس لیے کہ وہاں پہ سب ڈرائی کھجور ہماری انڈیا جاتی تھی اور ہم نے انڈیا کے اوپر ہی بیس رکھا ہوا تھا اپنی ایکسپورٹ کا. پتہ کہ دنیا کے 200 ملک ہے, ہم نے فوکس کس کو کیا ہوا تھا؟ انڈیا کو فوکس کیا ہوا تھا. تو انڈیا ایسا ملک ہے تو کسی وقت بھی جو ہے حالات خراب ہوتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں 72 سال کے اندر حالات اسی طریقے سے چلتے ہیں, کبھی کھل جاتی کبھی بند ہو جاتی ہے. تو اسی حالات کے اندر ہی ہم نے اپنے دوسرے جو ہے ملکوں کو فوکس نہیں کیا, کیونکہ وہ ایزی ایکسس تھا انڈیا, وہاں ڈرائی تھی. وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے تو بہت برا ہوا ہے, مگر میں اس کو ایک اپارچونیٹی بھی سمجھتا ہوں. اگر ڈرائی انڈیا میں بین ہو گیا, اب ہمارے پاس ایک راستہ ملا کہ یہ جو ہم ڈرائی کھجور جو انڈیا ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی بہتری کر کے
ہم سے زیادہ ویلیو دنیا سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, مگر بات یہ کہ شارٹ ٹرم کے لیے تو ہمارے لیے ایشو بن گیا, اتنی بڑی مارکیٹ بند ہو گئی, مگر بات ہے کہ اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے. جس طرح بات کی گئی ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے اپنے اس کے اندر پرابلمس کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو فارمس میں کوئی گڈ ایگریکلچر پریکٹسز نہیں ہے, طریقہ کار نہیں ہے کہ کھجور کو کس طرح سے توڑی جائے. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج پاکستان کا, کاسٹ آف پروڈکشن ہے. پتا کہ وہ میں صرف کھجور کی ہی بات کروں گا, کسی چیز میں بات کر لیں, آلو میں لے لیں, پیاز میں لے لیں, آم میں لے لیں, کینو میں لے لیں, ایپل میں لے لیں, کسی چیز کی بھی بات کر لیں, ویٹ میں لے لیں, کاٹن میں لے لیں, ہماری ہیٹ سب سے کم دنیا میں, ہماری ہیٹ کم ہے. اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی سب سے پہلے تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. اگر ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہم 72 سال میں جو ہم نے ترقی نہیں کی, اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے ریسرچ کو کبھی فوکس نہیں کیا, ریسرچ کی ہم نے کبھی ویلیو کو نہیں لیا. کیونکہ ریسرچ میں نے پورے پاکستان میں حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کے, کہیں بھی ریسرچ ہمیں نہیں ملی. جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے کھجور جو مسئلے کیا ہے کہ ہم آپ کیا ایشو ہے کہ ہم کھجور جو ہے ہماری, ہم تو 5ویں نمبر پہ زیادہ پروڈیوسنگ کنٹری, مگر کھجور ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ تو ہے نا, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس کی گڈ ایگریکلچر پریکٹسز نہیں ہے, اس کی کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس پیکیجنگ نہیں ہے کوئی, ہم اس کو پراپر پیکیجنگ کر سکے, ہمارے پاس کوئی پلانٹس نہیں ہے. تو میری جو ریکمنڈیشن ہے کہ ہم R&D کر کے نیو ورائٹیز کے اوپر فوکس کریں, جہاں پہ ہمارے ملکوں کے ساتھ جو گروئنگ کرتے ہیں کھجور, ان کے ساتھ حالات, جن کے ساتھ ملکوں کے ساتھ فرینڈلی حالات ہیں, تو ہم ان کے جو درخت ہیں چھوٹے خرید کے پاکستان میں لا سکتے ہیں, اور اس کو والی ورائٹی اگائیں جو دنیا میں آپ کو $3,000, $4,000, $5,000 پر ٹن آپ کو قیمت دے رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہم تو اگر ڈرائی کی بات کرتے ہیں تو 700, 750 ایک ویلیو بنتی ہے. تو ہم نے کبھی جو کھجوروں پہ وہ فوکس نہیں کیا جو دنیا مانگ رہی ہے. آپ سے وہ ملک مانگ رہے ہیں جہاں وہاں کھجور جا رہی ہے, جہاں پہ آپ کی ویلیو ایڈڈ ہو رہی ہے. ویلیو ایڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پروسیسنگ کر رہے ہیں, اس کا ڈیٹ سرپ بنا رہے ہیں یا ڈیٹ فیس بنا رہے ہیں. بات ہے کہ وہ وہاں ویلیو ایڈڈ ہو رہی ہے, مگر آپ کی ٹیبل ڈیٹس ایز سچ ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. کیا والیوم سے آپ کے, اگر میں فریش ڈیٹس کی بات کروں تو 1920 میں صرف وہ 22,000 ٹن ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو یہ کوئی فگر تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری جو کھجور کی جو ورائٹی وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی, لوگ پسند نہیں کر رہے. انفیکٹ کہ بلوچستان کی کھجور بہت اچھی ہے, میں مانتا ہوں, مگر انفارچونیٹلی جو بلوچستان کی کھجور کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ کھجور ایران جاتی ہے, ایران میں یہ ویلیو ایڈڈ ہوتی ہے, اچھی پیکیجنگ ہوتی ہے, اچھی اس کو پیک کر دیا جاتا ہے, اس کو صحیح صفائی کی جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ کھجور پروڈیوس آف ایران کا ٹھپا لگتا ہے اس کے اوپر, اور یہ ہمارے ملک میں بھی واپس آ کے بکتی ہے, اور ایران اس کو دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری فریش ڈیٹس کیوں نہیں ملک ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہیں, بہت بڑی کم کوانٹٹی ہے. یہ تو ٹھیک ہے گڈ ایگریکلچر پریکٹس نہیں ہے, ہیلڈ بیٹر نہیں ہے, ہمارے یہاں پیسٹیسائڈ کے ایشو ہیں, جو MRL میں کہوں گا میکسیمم ریزیڈیوس لمٹ ہے. دنیا بڑی اسٹرکٹ ہوتے جا رہی ہے MRL کے اوپر, کہ MRL ہر جگہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ زہر انسانی, یہ کینسر انسان کو دیتا ہے. تو یہ ہم جو پیسٹیسائڈ ہم استعمال کر رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے پیسٹیسائڈ آج جو پاکستان میں جو استعمال ہو رہا ہے, جو ملک کافی یورپ یا امریکہ یا جو ملک ہے ایشیا کے اندر بھی مڈل ایسٹ میں, وہ پیسٹیسائڈ کو بین کر دیا, مگر ہم نے ایز اے کنٹری ہم اس پیسٹیسائڈ کو بین نہیں کیا, اور پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں وہ پیسٹیسائڈ. ہمیں یہ اس چیز پہ ضرور سوچنا چاہیے. دنیا نے اس پیسٹیسائڈ کو اس لیے بین کیا گیا کوئی انسان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو پاکستان کے اندر جو 22 کروڑ عوام رہتی ہے, تو وہ بھی ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑے گا, صرف ایکسپورٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا, اپنے لوکل لوگوں کو بھی دیکھنا. دیکھیں آپ کی 22 کروڑ کی آبادی ہے, ہم یہ دیکھیں کہ 22 کروڑ کی آبادی میں آپ کے امپورٹڈ کھجوریں آپ کی بک رہی ہیں, اچھی ویلیو میں بھی بک رہی ہے, اچھے پیسے بھی مل رہے ہیں ہم سے اچھی ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں. بات ہے کہ باہر سے آ کے کھجور پاکستان میں اچھے پیسے لے سکتی, تو اگر ہم کھجور میں اپنی پروڈکشن کو بہتر کر دیں, اچھی ورائٹیز کے اوپر فوکس کر دیں,
तो भाई मैं तो कहता हूँ 22 करोड़ की आबादी तो सबसे बड़ी आपको पाकिस्तान के अंदर है, वो सबसे बड़ा आपका बायर है। मतलब कि हम एक्सपोर्ट के ऊपर तो बाद में जाएंगे, पहले 22 करोड़ को हम अच्छी सप्लाई करें कि फिर हम इसको सरप्लस हो तो फिर हम एक्सपोर्ट के ऊपर भी करें। अपॉर्चुनिटीज बहुत है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं उनको भी पता चल गया कि खजूर के क्या फायदे हो गए। आज से 20 साल 25 साल पहले यूरोप के शेल्फ में आपको खजूरें नजर नहीं आती, अब आपको यूरोप के शेल्फ में हो या अमेरिका के शेल्फों में, सुपर मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ, या सेंसबरी हो या टेस्को में हो या वॉलमार्ट में हो, तो आपको शेल्फ में भी ये प्रोडक्ट नजर आता है। अब लोगों को ये पता चल गया है कि खजूर के कितने फायदे हैं। लोग चीनी से ऑल्टरनेट ढूंढते हैं खजूर की तरफ जाना, कि खजूर एक फायदेमंद है। तो हमें ये चीजों को देखना पड़ेगा कि खजूर को कि जो हम अपनी R&D करके न्यू वैरायटीज के ऊपर फोकस करें और हम अपनी यील्ड को बेहतर करें। दुनिया में सबसे कम यील्ड हमारी है। और बात जो ऑयल की इन्होंने की है, तो ऑयल सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ। हमें मुझे आज तक समझ नहीं आता किसान की सोच में ये ऑयल लगाना क्या। वो कहते हैं चमक आ जाती है, भाई चमक आ जाती है आप बर्बाद कर देते हो। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक इफ्तिखार कंपनी से, मैं डायरेक्टर मार्केटिंग भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखबरी भी मैं सुनाऊंगा कि ये जो खजूर वैल्यू एडेड के लिए जो बाहर जाती है, हमने इसका ट्रायल पिछले महीने कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब इसका डेट का सिरप भी बना रहे हैं और हम डेट का क्लाउडी सिरप भी बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह पेस्ट तो पाकिस्तान में बन ही रहा है, मगर ये दो प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं बन रहे थे जो ये दुनिया में जाके जो अमेरिका, टर्की और जर्मनी जो परचेज करता था, तो ये उसी का कॉन्सेंट्रेट सिरप बना के, मतलब कि अल्कोहल में भी इस्तेमाल होता है और जगहों पे भी इस्तेमाल होता है। बात है कि हम इसके अंदर अब ये बनाना शुरू कर दिए इंशाल्लाह ताला। हमने इसमें दिसंबर के अंदर कमर्शियली हमने इसको लॉन्च कर देना है, कंज्यूमर पैकिंग के अंदर भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर भी। तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छी खबर है कि क्योंकि जो हम वैल्यू एडेड करते हैं क्लास 2 क्लास 3 की करते हैं, क्योंकि जो किसानों को पैसे नहीं मिलते, जब वैल्यू एडेड हम जाएंगे तो आपकी क्लास 2 क्लास 3 जब कटेगी वैल्यू एडेड के अंदर, और क्लास 1 तो आपकी टेबल डेट पे एक्सपोर्ट होगी, तो एंड ऑफ द डे ग्रोअर्स को बेनिफिट मिलेगा। जब ग्रोअर को बेनिफिट मिलेगा तो इनकरेज होगा, वो अपने आप को बदलेगा। बात है कि हमने 72 साल में अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं लेके आए, हमारे पास मॉडर्नेशन जो इक्विपमेंट्स नहीं है, हमने आज तक कोई ब्रांडिंग नहीं की अपने यहाँ पाकिस्तान के अंदर खजूर के अंदर। ठीक है पाकिस्तान के प्रोड्यूसर, मगर ब्रांड कोई भी आज तक पाकिस्तान का ये नहीं है। मुझे याद है आज से पता नहीं 20 साल पहले या क्या, वो अभी भी नाम मेरे जहन में, जो हम लाइक 20 साल पहले जब यूनिवर्सिटी नहीं, मेरा ख्याल से 20 से 25 साल पहले की बात है, जब स्कूल कॉलेज में थे, 95 में 94 की बात करूँगा, एक ब्रांड होता था पाकिस्तान में, पहले फ्री टॉप अभी भी मुझे याद है उस ब्रांड का, मगर वो ऐसा ब्रांड चला गया पता नहीं कहाँ के, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मगर एक ब्रांड तो था, वो एक इमेज भी बना था ब्रांडिंग का। हम सब उसी ब्रांड की खजूरें भी खाते थे आज से 90s के अंदर, मगर वो ब्रांड भी खत्म हो गया। ये सब चीजें निकल चुकी हैं हमारे पास से। बात ये कि हमने तो ऑर्गेनिक खजूर के ऊपर फोकस ही नहीं किया। जब तक हम पेस्टिसाइड को खत्म नहीं करेंगे, नेचुरल अपने प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। ऑर्गेनिक डेट्स का तो आपको पता है कि कन्वेंशन का मिसाल आपको दूंगा, अगर $100 की है पर टन, कन्वेंशन में आपको 300 से लेकर $400 आपको वैल्यू मिल सकती है। तो ये तो ऑर्गेनिक डेट्स हम पूरे पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो ये भी हमारे पास इश्यूज हैं। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बलूचिस्तान है, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर सकते हैं खजूरें, बात है कि यहाँ सर्टिफिकेशन की भी हमें प्रॉब्लम्स आती है कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन बॉडीज भी मौजूद नहीं है, जो हमें श्रीलंका से मंगाना पड़ता है अपने क्या कहते हैं ऑर्गेनिक के लिए। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें जो सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कि SGS भी है यहाँ पे, और भी ऐसी बॉडीज हैं जो यहाँ पे जो ISO और दूसरे जो सर्टिफिकेशन है, ग्लोबल गैप हो गया, SANEX हो गया, वो करती हैं। तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक के अंदर हम हॉर्टिकल्चर के अंदर बड़ा मिसिंग लिंक है, क्योंकि हम कन्वेंशन पे फोकस किया होता। अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। अब हमें जो मैंने बात की वैल्यू एडेड पे जाना पड़ेगा। हमें जो डेट्स जो है, मैंने वही बात की न्यू वैरायटीज के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा कि हमारे जो एरिया है, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है अपना पाकिस्तान के अंदर, वो शक्कर के अंदर है, अपना
खैरपुर के अंदर एक जगह के अंदर हमें कॉमन फैसिलिटीज बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट लगाएं पैकेजिंग दुनिया में। उस पैकेजिंग के अंदर जब हम आएंगे तो उसके अंदर ग्रोअर भी बेनिफिट कर सकता है और एक्सपोर्टर भी वहां से फायदा कर सकता है। जैसे कॉमन फैसिलिटीज बनेगी और हम कॉमन फैसिलिटी से कहते हैं वो बनाएं जिसका आप चार्ज करें किलो के ऊपर, जो भी बनाए हुकूमत मिलके बनाए, प्राइवेट सेक्टर या हमारी एसोसिएशन मिलके ये इनिशिएटिव ले और ये जो है इसको बनाया जाए कॉमन फैसिलिटीज में। हम ये कहते हैं कि ये जो फंड हम EDF से ले सकते हैं उसको कॉमन फैसिलिटीज को डेवलप करें। पहले ना एक फेज के अंदर, हम 2 फेज के अंदर शुरू करें, हम सिंध से शुरू करें और हम बलूचिस्तान में से हमारी जो प्रोडक्शन है जो ज़्यादा इन 2 एरिया के अंदर है। तो अगर हम कॉमन फैसिलिटीज बनाते हैं अपनी प्रोसेसिंग पैकेजिंग के साथ और कोल्ड स्टोरेज की भी हमें ज़रूरत है, इसके साथ बगैर कोल्ड स्टोरेज के नहीं है ये फैसिलिटीज हो सकती है। अगर मैं समझता हूँ ये फैसिलिटीज बन जाती है तो उसमें ग्रोअर का बेनिफिट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इसलिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट की हमें ज़रूरत है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है या ड्राई करने की या जो भी टेक्नोलॉजी या 70 साल से वही पुराने ज़माने के वक्तों में बैठे हुए हैं। 2020 में हम बातें कर रहे हैं खजूर सुखाने का, खजूर उगाने का, सब पुराने तरीके का। जो एडवांस तरीके अगर हमने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो मैं ये समझता हूँ हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये तो वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। यहाँ तो हम कहते हैं कि 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग। हम कहते हैं 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर खजूर में, 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैंगो के अंदर है, सिट्रस के अंदर हम 15 दुनिया के, डेयरी के अंदर हम दुनिया के 10 नंबर के अंदर है। तो हम दुनिया के अंदर नंबरों में तो है, मगर जब हम उसमें आते हैं एक्सपोर्ट के अंदर तो हमारे फिगर्स ही नहीं है। तो हमारे पास मसला तो है ना, इसलिए तो हम हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। अनफॉर्चुनेटली ये 32 बिलियन को तो हमें कम से कम अगले 5 साल का हमें जो हमारा रोड मैप है, जिस जो हमने बातें की है, अगर ये बातें हो जाए मैं समझता हूँ 5 साल के अंदर कम से कम हम 300-400 मिलियन डॉलर के ऊपर जा सकते हैं फ्रेश रेट्स के अंदर, और साथ हम वैल्यू एडिड भी करें। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। हमारे पर एग्जाम्पल बड़े आपके हमारे जो ओमान मुल्क है, ओमान आपको मैं ये एग्जाम्पल दूं कि इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया खजूर उगाता नहीं है, ओमान से खजूर इंपोर्ट करता है और उसके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाता है सिर्फ इंडिया के अंदर। बात है कि ओमान से इंपोर्ट करता है और इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बनाता है और उसकी बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट भी करता है। और इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी मार्केट है, डेवलप हो रही है। आपको पता है सिर्फ एक ऑल्टरनेट है शुगर का, कि आपको पता है कि जिस तरह हनी है इसी तरीके से डेट सिरप भी, और सबको पता है इसके अंदर कितने फायदे हैं। और दुनिया हेल्थ की तरफ जा रही है, लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, लोग ऑर्गेनिक चीजें मांगते हैं, हेल्थ बेनिफिट चीजें मांगते हैं, लोग उस ट्रेंड से निकल रहे हैं। मगर हमने ऐसा पाकिस्तान, हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, हम उसी चीजों से आज 72 मिलियन है। अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, 72 नहीं, ये भी हम 10-20 मिलियन के अंदर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे जो मुल्क है बहुत तेजी से मार्केटों में एंटर हो रहे हैं और बड़े एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं। जिसमें आपका UAE हो गया, आपका इराक हो गया, आपका सऊदीया हो गया, आपका अल्जीरिया हो गया, तुनीजिया हो गया, जो दुनिया के बेस्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज है और इतनी जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैल्यू एडेड देखें, आप खजूर के अंदर कट करके उसके अंदर बादाम डाल रहे हैं, ये तो एक अलग वैल्यू एडेड हमारे पास और भी, मगर हम इन चीज़ों से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्ट तो ठीक है हम बढ़ाएं, हम पहले अपने 22 करोड़ को तो एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे, क्वालिटी देंगे, अच्छी पैकिंग देंगे। मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान के अंदर अच्छी आपको पैसे मिलेंगे तो आप ग्रोअर मजबूत होगा, जब ग्रोअर मजबूत होगा तो दूसरे लोग भी इंटरेस्ट लेके इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमें अट्रैक्शन देना पड़ेगा इस सेक्टर के अंदर। डेट से एक बहुत बड़ा अगले अभी अगर 1.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है तो मैं समझता हूँ कि ये साल के अंदर जो डेट्स की जो एक्सपोर्ट है 8 से 10% इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड की। हमारे पास ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा है, मगर हमें अपने पाकिस्तान का शेयर अगर मैं देखूं अगले 5 सालों में हम बढ़ नहीं रहे, हम डिक्लाइन की तरफ आ गए। डिक्लाइन भी कितना आया, 50% से ज्यादा डिक्लाइन आ चुका है। तो हमें इस बुढ़ान से निकलने के लिए हमें यही काम करना पड़ेगा। R&D पे हमें जाना पड़ेगा। R&D के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बातें कर लें तो वो कोई हल नहीं है हमारे लिए, मगर अगर लॉन्ग टर्म ही इसके लिए होगा कि हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। शॉर्ट टर्म के लिए तो यही है कि कॉमन फैसिलिटीज बना लें,
اور جو کھجور ہے اس کو پراپر پیکیجنگ کر لیں, اس کو صاف ستھری کر لیں, اس کو پراپر مارکیٹ کر لیں. دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے آج چیز بکتی ہے تو وہ آپ کی گڈ پیکیجنگ کے اوپر, اپیئرنس پہلے دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد سیکنڈ فیس آتا ہے ٹیسٹ اور آپ کا دوسرا. ہماری تو پہلا سے لے کے دوسرے تک ہی ہم خراب ہیں, نہ ہماری پیکیجنگ اچھی ہے, نہ اسٹینڈرڈ ہے کوئی, نہ ہمارے پاس جو مسنگ چیزیں ہیں اپنا مطلب کہنے کا جو سرٹیفکیشن کی تو میں نے بات کی آرگینک کی, مگر جو ہم بات کر رہے ہیں پانی دینے کے طریقے کا, گلوبل وارمنگ تیزی سے پاکستان کی کلائمیٹ کو چینج کر رہا ہے, کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے, ہمارے ملک کی سائیکل 1 مہینے آگے جا رہی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز 1 مہینے کی سائیکل آگے جا رہی ہے, مگر پاکستان نے اس اسٹیپ کو آگے نہیں لیا. انڈیا ہو یا دوسرے ملک ہو, سب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سائیکل چینج ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں بھی اس کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو پانی ہے 90% وہ ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے, 60% ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں. اس کی مین وجہ ہے فلڈ سسٹم, ہم ڈرپ ایریگیشن پہ نہیں ہے, ہمیں ڈرپ ایریگیشن پہ آنا پڑے گا. ہم پانی 2 چیزیں, پانی کم دینا یا زیادہ دینا, دونوں کو ہیلڈ کو کم کرتا ہے, کوالٹی پہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو کہنا یہ میرا بس یہی آخری میں کہوں گا کہ ہمیں نیو ورائٹیز پہ فوکس کرنا پڑے گا. جو ہماری ورائٹی جو آلریڈی ہے, اگر ہم اس پہ ڈپینڈ کریں گے تو میرا خیال سے ہم سکسیس ایکسپورٹ پہ نہیں بڑھ سکتے. جو ابھی ورائٹیز ہے وہ بھی چلتی رہے, اور نیو ورائٹیز میں بھی کام کرنے سے ایک لانگ پروسیس ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ دونوں ہم کام کریں گے تو اگلے 4 سالوں کے اندر کہیں تو کہیں ہم کھڑے ہوئیں گے. ایک اچھے ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اگلے 5 سالوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 5 بیسٹ ملکوں کے اندر آنا چاہیے, رینکنگ کے اندر اور ویلیو کے اندر. تو میں واپس شکریہ ادا کروں گا کہ قونصل جنرل صاحب کا, عاطف عزیز صاحب کا, اور میں کیڈیٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میمن صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے. اور میں یہ بڑی خوشی ہے کہ میں نے اپنا یہاں انپٹ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے, ہماری منزل انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. مگر ایک اور بات جاتے جاتے میں ضرور کہوں گا, فالو اپ میٹنگ ہونا بہت ضروری ہے. یہ میٹنگ پہلی اور آخری نہ ہو, اگلے 3 یا 1 مہینے کے بعد میٹنگ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں تھے 1 مہینے پہلے اور ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا, کیا وے فارورڈ ہم نے بنایا, کیا آگے ہم نے بڑھنے کے لیے کیا کیا. شکریہ. بہت شکریہ وحید صاحب, بہت شکریہ. میں اس پہ آپ نے جو ماشاءاللہ سیرت پہ کام کیا, آپ سے میں ذرا اس پہ بعد میں انپٹ بھی ذرا لے لوں گا سر. اچھا, اب میں جو ہوں ایز ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر جو لاس اینجلس میں بیٹھا ہوں, میں اب اپنی پریزنٹیشن آپ لوگوں سے سارے پارٹیسپینٹس کی نالج کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا یو ایس فوڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن جیسے ہمارا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے, ایسے یہاں پہ یو ایس میں ایک کاؤنٹر پارٹ باڈی ہے گورنمنٹ کی. جتنا یو ایس اے میں کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, یو ایس ایف ڈی اے کی سرٹیفکیشن اپروول اس مسٹ, چونکہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, $20 ٹریلین کا اس کا جی ڈی پی ہے, تو یہاں ہر چیز بڑی کنٹرول اور بڑی اچھی. پلس میں آپ کو جو میں نے مارکیٹ میں سروے کیا کھجوروں کے حوالے سے, وہ سب میں آپ سے شیئر ابھی کرتا ہوں اس پریزنٹیشن میں. تو میں ابھی اپنی یہ پریزنٹیشن آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. علی, یہ میری ذرا پریزنٹیشن مجھے الاؤ کر دیں شیئر اسکرین. جی آپ سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے پریزنٹیشن؟ جی سر. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل. اچھا, یہ کچھ پہلے میں ایکسپورٹ فگر سے شروع کرتا ہوں. میرا سارا جو فوکس ہوگا وہ انٹائر یو ایس اے کے حوالے سے ہوگا. اچھا جی, 2019 میں جو پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس تھی کھجوروں کی وہ $3.6 ملین تھی, اور جو امریکہ کی ٹوٹل اس کے اندر جو شیئر ہمارا بنتا ہے وہ 5.6% بنتا ہے ڈیٹس کے حوالے سے. جو پاکستان نے جتنی بھی کھجوریں باہر برآمد کی, 5.6% ہماری جو ہے کھجوریں امریکن مارکیٹ میں گئی, اور یہ پچھلے 3 سال سے یہی ٹرینڈ ہے ایز پر دی یو ایس ٹریڈ ڈیٹا. اچھا جی, یو ایس کھجوریں اگاتا بھی ہے, کھجوریں بیچتا بھی ہے. تو یو ایس نے بھی جو ہے ٹوٹل امپورٹس جو کی ڈیٹس کی 2019 میں وہ
$64 मिलियन की और $74 मिलियन की इसकी एक्सपोर्ट्स थी। और हमारे जो मेन कंपेटिटर्स हैं वो ट्यूनीसिया फॉर एग्जांपल, हम अगर $3.6 मिलियन की पाकिस्तान कर रहे हैं तो ट्यूनीसिया ने $19 मिलियन की खजूरें अमेरिका को बेची, उसके बाद अल्जीरिया ने $13.9 मिलियन की भेजी। अगली स्लाइडों में मैं बताऊंगा कि जी हमारी जो फ्रेश डेट्स हैं, जो खजूरें हैं जो रिटेल पैकेज में आ सकती हैं, वो अभी नहीं आ सकती क्योंकि यूएस एफडीए ने डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को कुछ सरकारी तौर पे कुछ चीजें मांगी हैं, पेस्ट की डिटेल के, जी हम कौन से पेस्टिसाइड यूज करते हैं, हमारी ग्रोइंग की प्रैक्टिसेस क्या है, हम यूएसए में कहाँ का इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो टीडीएपी और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन उस पे काम कर रहे हैं, जो कि वो ऑफिशियली डिटेल्स शेयर करेंगे यूएस एफडीए के साथ। तो हमारी जो खजूरें अमेरिका में आ रही हैं वो प्रोसेसिंग के लिए आ रही हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए आ रही हैं, विच मीन सिरप बनाने के लिए, कैंडीज बनाने के लिए, बेकरी या कन्फेक्शनरी आइटम्स बनाने के लिए। एक चीज मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए सबको बताता चलूं कि जी अमेरिका, स्पेशली जिस रियासत में हम मौजूद हैं कैलिफोर्निया, ये 90% अमेरिका में जितनी खजूरें उगती हैं वो कैलिफोर्निया स्टेट में उगती है, फॉलोड बाय एरिजोना, जो कि हमारी वेस्ट कोस्ट साइड ऑफ द अमेरिका, मगरबी साइड पे वो चीजें आती हैं। और अमेरिकन खजूरें मैंने खुद यहाँ पर खाई है, दैकलेत नूर और मजदूल के नाम से वैरायटीज हैं, जो कि इन्होंने अरबिक कंट्रीज से 1900 की दिहाई में यूएस गवर्नमेंट का उसका किया विजन और थिंकिंग देखें, इंपोर्ट किया, और यहाँ पे उन्होंने पूरे फार्म हाउस वगैरह बनाए। कैलिफोर्निया और एरिजोना का जो वेदर है वो रेप्लिकेट करता है जो मिडिल ईस्टर्न का है, तो यहाँ की डेट्स न्यूट्रिशियस, ऑर्गेनिक और काफी बड़ी होती है। मैं आपको अभी आगे चल के दिखाता हूँ इसी प्रेजेंटेशन के अंदर। अच्छा जी, ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी, चूंकि डेट्स आ भी रही है, तो जो हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल जिसको यूएस के लोग यहाँ पर कहते हैं, यूएस गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पाकिस्तान कस्टम टैरिफ इसको कहा जाता है, वो 0804.10 है। अच्छा जी, जो उसका फर्दर अगर मैं 8 या 10 डिजिट्स पे जाऊं, 0804.10.20 पैक इन यूनिट्स 4.6 kg के अगर आप पैकेज में भेजते हैं अमेरिका, तो उसकी ड्यूटी 13.2 सेंट्स पर kg है। बट जो मेन चीज है जो आप लोगों की नॉलेज में होनी चाहिए हमारे पाकिस्तानी ग्रोअर्स एंड एक्सपोर्टर्स की, ये जो दो HS कोड मैंने लिखे, 0804.10.40 विद पिट्स गुठली या 40 विदाउट पिट्स जिसमें गुठली मौजूद ना हो, वो ड्यूटी फ्री आप यहाँ पे अमेरिका के अंदर भेज सकते हैं, विच मीन आपने कोई ड्यूटी नहीं उस पे पे करनी। अच्छा, ड्यूटी भी जो है वो जो इंपोर्ट ड्यूटी जिसको कहते हैं वो भी इसमें नॉमिनल है। अगर आप इन केस खुदा ना खास्ता आपका इंपोर्टर जो यूएस इंपोर्टर होता है, उसने यहाँ यूएस कस्टम्स के सिस्टम में फॉर्म में एंट्री करवानी होती है कि जी ये जीएसपी बेनिफिशियरी आइटम है, वरना एमएफएन जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो जनरल ड्यूटी वो 1 सेंट से लेके 2.8 सेंट्स पर केजी लगती है इसके हवाले से। अच्छा जी, अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है, यूएस एफडीए की क्या रिक्वायरमेंट्स है। आजम साहब ने सप्लाई साइड के इश्यूज बताए जब मैं उनसे डिस्कशंस करता रहा कि जी पाकिस्तान की खजूरें फ्रेश क्यों नहीं आती, जिसपे उन्होंने वो सप्लाई साइड के प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ इशू डिस्कस किए, सपोर्टेड बाय जो हमारे वहीद साहब ने जो अपनी टॉक के अंदर सारा कुछ बताया। अच्छा जी, यूएस एफडीए की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 70 पाउंड का ये 31 केजी का कंजम्पशन के लिए आता है, वो सब्जेक्ट टू 8E इंस्पेक्शन इनके रूल्स के मुताबिक है, और उसमें उन्होंने कुछ ग्रेड की रिक्वायरमेंट्स की होती हैं, जो कि आगे आपको मैं ग्रेड्स का भी बताऊंगा। डेट्स इन रिटेल पैकेजेस क्या है कि जी होल या पिटेड। अच्छा, जब यह पिटेड डेट्स की जो लिखा है इसका मतलब है कि उसमें से गुठली निकाल दी गई हो। अगर प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व डिटेल इन रिटेल पैकेज, जो कि आपको ज्यादा वैल्यू ऐड, खजूर भी दिखाता हूँ। फिर डेट्स फॉर पैकेजिंग होल और पिटेड डेट्स का मतलब वही गुठली निकाल दी हो, बल्क कंटेनर्स में आई हो, जो यहाँ पे अमेरिका के अंदर रीपैक हो, और वो फिर रिटेल पैकेजेस में मार्केट्स में, वॉलमार्ट में, कॉस्को में, रैल्फ जो एक और बड़ी चेन है यहाँ पे बेची जा सके। अच्छा जी, ये जो डेट्स फॉर प्रोसेसिंग है जी, ये हम लोग जो पाकिस्तानी डेट्स यहाँ पर आती हैं, ये इसकी डेट्स फॉर प्रोसेसिंग प्रिपेयर्ड, बनी हुई या प्रिजर्व होकर आए, जो डोनेट भी की जा सकती है चैरिटेबल एंटिटीज को, सब्जेक्ट टू ग्रेड इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो एफडीए की होती है। प्रोसेसिंग वही जो मैंने आपको भी अर्ज किया, बेकरी, कन्फेक्शनरी और अदर प्रोडक्ट्स जो कि सब्सटेंस ऑल्टरिंग देयर कलर, कोई ऐसी चीज उसमें ना हो जिसका कलर को वो ऑल्टर करे।
Dates prepared or preserved refers to dates processed into confection or other products coated with substance altering their color, or dates prepared for incorporation by chopping, slicing or other processing which materially alters their form. ये उसकी definition उन्होंने बताई है, तारीफें बताई हैं कि जी कैसे वो dates prepare या preserve कहलाती है, जो हमारी उस पर आती है. रजिस्ट्रेशन होती है जी, जो शिपर है और रिसीवर है मस्ट बी रजिस्टर विद द एफडीए. जैसे आजम साहब की कंपनी अमेरिका में रजिस्टर है, अगर पाकिस्तान में से किसी ने अगर अपनी डेट्स वहां पे भेजनी है ईस्ट कोस्ट साइड पे, तो आजम साहब की कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है. हमारी वेस्ट कोस्ट साइड पे 5 बड़े इंपोर्टर हैं जो ये पाकिस्तान से डेट्स इंपोर्ट करते हैं, उनके सप्लायर्स हैं जो पाकिस्तान से भेजते हैं. और जो बाकी इनकी सरकारी तौर पे SC6 सर्टिफिकेशन है, वो मैं लिंक्स वगैरह TDAP को दूंगा, वो सारा आप लोग देख सकते हैं. उनके जैसे पाकिस्तान कस्टम्स के फॉर्म्स होते हैं, गुड्स डिक्लेरेशन, इसी तरह इनके भी फॉर्म्स हैं US FDA के. अच्छा जी, अब जो US गवर्नमेंट ने जो ग्रेड्स डेट्स की जो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है वो बताएंगे. इनका जो सबसे नंबर 1 या प्रीमियर है वो है US ग्रेड A और US फैंसी. और उसके बाद जो मेन जो चीज चलती है वो US ग्रेड B और US चॉइस, इसको भी वो कहते हैं, जो यहाँ पे ज्यादातर डेट्स अमेरिका में जो खाई जाती हैं, जो उगाई जाती हैं. अभी मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो मैंने डेट्स का पैकेट आपके लिए लेकर आया था, मैं आपको भी डेट्स भी दिखाता हूँ. फिर ये इनकी मुख्तलिफ ग्रेडिंग्स हैं. ये टेक्निकली आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं इनकी अंग्रेजी देखने के बाद कि जी जो हमारी डेट्स उस पर उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं. ये मुख्तलिफ इनके स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे. ये TDAP आपसे हमारी प्रेजेंटेशन भी शेयर कर लेगी और आपको ये इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा इसको पढ़ना और समझना. अब ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फ्रेश डेट्स अभी पाकिस्तान की अमेरिका में नहीं आ रही. ये वो डेट्स हैं जो यहाँ पे अमेरिका में बेची जाती हैं रिटेल स्टोर पे. और जैसे वही साहब ने बताया, गोरे को बड़ा समझ आता है कि जी हमारी डेट्स, ये जो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि डेट्स बड़ी पावरफुल होती है, हम रोजा इससे ब्रेक करते हैं, एनर्जी बूस्टर है. ये ट्रेंड यहाँ पर आ रहा है. और कोरोना के बाद जो गोरा घबराया हुआ है, ऑर्गेनिक पे और जा रहा है. डेट्स की यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ी है, डेट्स की सप्लाई भी यहाँ पर बढ़ी है. जो कुचेला वैली, जो कैलिफोर्निया जहाँ पे डेट्स उगती हैं, तो ये आप जरा पैकेजिंग इनकी देखें. ये ऑर्गेनिक है, इन्होंने लगाया हुआ है ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, USDA की स्टैंप लगी हुई है, नेट वेट. ये उसका फ्रंट पे आप देख लीजिएगा जो पैकेजिंग यहाँ पे अवेलेबल है. और ये उसके पीछे जो डिटेल्स वो लोग लिखते हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स हो गए, सारी डिटेल्स, US FDA ऑर्गेनिक, रॉ कहाँ पर, ये सारी डिटेल्स. ये पैकेजिंग जो हम पाकिस्तानी हमारी जो ग्रोअर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिस पे फोकस करना चाहिए US FDA की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए, क्योंकि आई एम श्योर कि ये DPP ने जो भी सरकारी तौर पे चीजें US FDA को रिक्वायर करनी है, वो अगले 3-4 महीने में शायद प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेंगे. DPP वाले अगर बैठे होंगे इस मीटिंग में, इस पर बता भी देंगे. और ये देखिए, मैंने आपके सामने एक वो पैकेजिंग रखी है जो कि $10 इसका पैकेट है और 200 ग्राम का. देखें जी, ये US डेट्स का ये एक पैकेजिंग जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, मेड इन नेचर, आई कैचिंग. जो भी भाई साहब ने बताया कि मैं भी यहाँ पे अगर एज अ पाकिस्तानी कंज्यूमर जाता हूँ, सबसे पहले पैकेजिंग देखता हूँ जी क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद प्रोडक्ट खरीदता हूँ. $10 तो मैंने वहां पर दे दिया ना. 200 ग्राम के देखें जी, मैंने ये $10 इसके पे किए. ये पैकेजिंग आ गई है. ठीक है जी, ये लास्ट स्लाइड थी. अच्छा जी, ये देखें जी, ये खजूर है जी, ये कैलिफोर्निया कोचेला वैली की खजूर है. इसकी साइज आप देखें, US फैंसी, ये जो US ग्रेड मैंने आपको दिखाया था भी, ये वो वाली है, बड़ी सी खजूर. और ये इसमें से गुठली नहीं निकली हुई, गुठली इसके अंदर है. ठीक है जी, ये खजूर है बड़ी सी, जो मैंने पाकिस्तान में मेरी सारी जिंदगी गुजारी है. ये खजूर जब मैंने फर्स्ट टाइम खाई तो एक डिफरेंट टेस्ट और एक बड़ा हेल्दी स्नैक के तौर पे, और गोरा ये बड़ा खाना शुरू हुआ है. अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे एक फार्म है, इंशाल्लाह हम TDAP में एक यहाँ से एक इराकी अमेरिकन है, CG साहब से मुलाकात भी हमने उसकी करवाई थी, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगा भी. अभी आप पैकेजिंग देखें इसकी, ये पैकेजिंग सारी प्रोडक्ट ऑफ द USA, फ्रेश मेल्डोल्ड डेट्स, सारी इस पे न्यूट्रिशन फैक्ट्स, ये देखिए सारी चीजें इस तरह की पैकेजिंग इनकी होती है. और ये जो कार्ड बॉक्स भी, ये भी बड़ा हाई क्वालिटी है. ये हमारे पाकिस्तान यूज कर रहे नहीं, हल्का क्वालिटी का कि जी वो आप उठा के जाए और रास्ते में फेंक जाए.
ये देखें बटर पेपर, और ये अंदर इन्होंने कंपार्टमेंट से बनाए होते हैं, ये मार्केटिंग के हवाले से, और ये इस तरह ये लोग बेचते हैं, और इसकी इतनी अच्छी इनको यहाँ पे प्राइस मिलती है। गोरा ऑर्गेनिक के नाम पे इतना पैसा यहाँ खर्च करने को तैयार है। हम लोग सिंपल इंडस्ट्रियल यूज में अपनी डेट्स वगैरह भेज देते हैं। वही वैल्यू एडिशन की बात जो वहीद साहब भी कर रहे थे, जो भी हम टेडाप में सुनते भी रहे नौकरी करते करते कि जी वैल्यू एडिशन, उस पर पता नहीं हम लोग क्यों नहीं ज्यादा फोकस कर पाते। तो ये ब्रीफली सर इस किस्म की यूएस के अंदर रिटेल पैकेजिंग, जो मैंने आपको कुछ अपनी प्रेजेंटेशन में भी दिखाया है, जो मैं खुद यहाँ मार्केटों में जाता हूँ, सर्वे करता हूँ, देखता हूँ, प्राइसेस देखता हूँ, और यही कोशिश होती है कि हमारी डेट्स प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनिक का ठप्पा लगे हुए यहाँ पे बिक्री हो, कॉस्को के अंदर, वॉलमार्ट के अंदर, या अब ई कॉमर्स का यहाँ पे बड़ा सिलसिला शुरू हो गया है, लोग घर बैठे मंगाते हैं। ये चीजों पे हमने फोकस करना है। सप्लाई साइड के इश्यूज पे अगर हमारे लोग मिलके काम करेंगे, हमारे हुकूमती इदारे, हमारे ग्रोअर्स, एक्सपोर्टर्स, हम यहाँ बैठे हैं आपकी मार्केटिंग के लिए, आपको बताने के लिए, चीजें शेयर करने के लिए। आपके अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, हम खुद लेके जाएंगे। अभी टीडीएपी से कुछ खजूरों का आने का सिलसिला भी बन रहा है, मगर खजूरें उस वक्त ही क्लियर होंगी, फ्रेश डेट जब तक वो डीपीपी की क्लियरेंस नहीं होगी, अप्रूवल्स नहीं होगी, एफडीए उसको अप्रूवल नहीं देगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए ग्रोवर या एक्सपोर्टर और यहाँ पर सप्लायर वो यूएसएफडीए से रजिस्टर्ड हो, तो वो सेक्शन 8E ऑफ द जो यूएसएफडीए की इंस्पेक्शन से उसकी एग्जेम्पशन हो जाएगी। तो ये ब्रीफली मेरी एक ये था सबमिशन आप सब लोगों को, ग्रोवर्स एंड एक्सपोर्टर्स को। ये कुछ चीजें मैंने टेडाप को बाय डिप्लोमेटिक बैग भी भिजवाई है ताकि वो शेयर कर सकें, बता सकें पैकेजिंग के हवाले से। और वो डीपीपी के साथ स्पेशली इनको पकड़े, अगर डीपीपी का कोई नुमाइंदा यहाँ बैठा है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो भी जरा इस पे रोशनी डालें जो उनको खत यूएसएफडीए ने लिखा है। तो मेरी तरफ से सर बस यही मेन पॉइंट्स थे, बाकी उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर हम ले लेंगे सर सब लोगों से। जी अपना करीम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी बड़ी एफर्ट थी जो आपने ये हमारा पहला वेबिनार शुरू करा है। सेक्रेटरी टीडीएपी ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि इंशाल्लाह हम हर हफ्ते जो है हफ्ते में एक दिन जो है एग्रो फूड का वेबिनार कराएंगे अभी अगले 3 महीनों के लिए। कोविड की सूरत में क्योंकि ये अभी जो है वो हमारे एग्जीबिशंस नहीं हो रहे, डेलीगेशंस नहीं जा रहे, तो इसी तरह हम जो है पूरी दुनिया में हमने कमर्शियल काउंसलर्स जो हमारे हैं उनसे कांटेक्ट किया है। उन्होंने डिफरेंट स्टेक होल्डर ने या जो जिनको नॉलेज है उनसे कांटेक्ट किया है, और हमने एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स की आज जो है सेक्रेटरी ऑफिस में दी है। हम वो इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। डेट्स का एक बड़ा इशू जो इंडिया की वजह से शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, और इंशाल्लाह हम इससे जो है वैल्यू एडिशन की तरफ भी जाएंगे और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का पूरा फोकस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का फोकस है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का फोकस है, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी डेट्स के जो की स्टेक होल्डर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, उनसे मीटिंग कराने जा रहे हैं। और हमने पूरी दुनिया में हमारे जो ट्रेड ऑफिसर्स हैं उनको हमने टास्क दिया कि भाई आप आइडेंटिफाई करो कि आपने अगले 1-2 महीने में डेट्स की प्रमोशन के लिए क्या करना है। तो हमें 38 कंट्री से डेट्स की रिक्वेस्ट आई हैं सैम्पलिंग एंड डेट प्रमोशन इवेंट्स के लिए, और आज हमने फाइल सेक्रेटरी साहब को भेजी है फॉर अप्रूवल, और इंशाल्लाह अगले महीने में हम 35 कंट्रीज को डेट सैंपल भेजेंगे और डेट सैंपलिंग और डेट्स इवेंट। तो ये इंशाल्लाह महीने डेढ़ में ये एक्टिविटी होगी, और हम मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे डेट्स के एक्सपोर्टर हैं कि इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट करें। हमने मैंगो की भी प्रमोशन कैंपेन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत जल्दी हमने पेमेंट भी कर दी है और कर दिए, तो उसको महीना भी नहीं गुजरा, और आप इंशाल्लाह आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आपको भी बड़ा फायदा होगा और सेक्टर को तो होगा ही होगा। तो इस इवेंट के बाद जो है
ब्लड सैंपलिंग और प्रमोशन के बाद हमने इंशाल्लाह कोविड की सूरत हाल भी बेहतर होगी तो हम पाकिस्तान में ब्लड्स एग्जीबिशन भी करेंगे और आपको डेलीगेशंस में और एग्जीबिशन में दुनिया भर में भेजेंगे, तो आप भी आइडेंटिफाई करें अगर ज़रूरत है तो, और हम इसी तरह के वेबिनार्स भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हमारे जो यूएसए में जो हमारे स्पीकर्स हैं इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आंसर हमारे एक्सपोर्टर या जो भी ग्रोअर्स हैं उनको जब भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आपसे पूछेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो वो क्वेश्चन एंड आंसर में होगी। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर। अब क्वेश्चन सर आप बताएं, किसी ग्रोअर के जहन में हो किसी के भी, तो वो अपना इंट्रोडक्शन करा के नाम बता के कंपनी का नाम तो पूछे सर। अमेरिकन स्पेसिफिक मैं हूँ, आजम साहब बैठे हैं, अमेरिकन मार्केट के हवाले से आपके जो भी अब जहन में सवाल हो सर। हेलो जी फरमाइए अपना। इमरान शेख साहब। जी सर, मैं इमरान शेख बात कर रहा हूँ, बिलोंग करता हूँ सक्कर से सर। जी मैं सर। खुद एक ग्रोवर और बिजनेस माशाल्लाह। भी करता हूँ। तो मेरा फार्म का नाम है ताज एग्रीकल्चर फार्म। तो मैं सर मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटीज कर रहा हूँ, असील है, कच्ची है, तीसरी अपने माजूल भी है। मेरा सवाल आजम साहब से है। सर ने एक अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि डिस्टेंस होना चाहिए ट्री टू ट्री, वो मैं डिस्टेंस पूछना चाह रहा हूँ कि वो कितना होना चाहिए और किस वैरायटी का कोई क्या डिफरेंट डिस्टेंस है, जैसे असील या डक्की का डिफरेंट तरीकेकार होता है डिस्टेंस रखने का, वो मुझे पूछना था। और एक एकड़ में कितनी ट्रीज होनी चाहिए आइडियली, मतलब जो ग्लोबली एक एक्सेप्टेंस है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो इन्होंने एक नेट दिखाया था जिसको बचाने के लिए, हमारे पास ज्यादातर प्रॉब्लम होता है बारिश का, तो बारिश से बचने के लिए क्या किया जाए ताकि जो हमारी जो खजूर है वो ऑन द ट्री ही पक जाए, ना कि हम अर्ली उसको ग्राउंड पे लेकर आए पकाने के लिए। ये मेरे दो सवाल हैं जो टेक्निकली यहाँ प्रॉब्लम होते हैं एवरी फार्मर को। ये मैं आजम साहब से मेरे दो सवाल। अच्छा, जो स्पेस है सब खजूरों की एक जैसी होती है, मजूल हो या डेगलेट हो या असील हो, उसका एक ही है। और जहाँ तक कितने पर एकड़ होने चाहिए उसका मुझे इल्म नहीं है, मैं अपने जो ग्रोअर हैं कैलिफोर्निया से पूछ के आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। दूसरा जो सवाल है आप नेट का, अगर नेट के ऊपर अगर आप छतरी की तरह प्लास्टिक डाल देंगे तो आप बारिश से बच जाएंगे। तो आपने नेट भी डाला है और उसके ऊपर एक जो प्लास्टिक है वो अम्ब्रेला की तरह डाला है ताकि वो नेट के साथ लगे नहीं। ठीक है। और ये कोई साइज है इसका स्पेसिफिक नेट का या प्लास्टिक का? नेट साइज तो जो यूनिवर्सल है कि आपने देखना है उसका, आपका गुच्छा कितना बड़ा है, जितना बड़ा नेट लगाओगे उतना ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो जी नासिर खासखेली साहब, निसार खासखेली। निसार खासखेली सर, मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी सॉरी, मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ और मैं इससे मादरत कर रहा हूँ। अभी मेरे जो मेन पॉइंट है, हम डेट्स को एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो पिछले 20 साल या 25 या 30 साल हो गए हैं, जितनी भी हमने डेट्स की एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सके हैं। उसके पीछे वजूहत क्या है उसको कोई नहीं देख रहा। मैं हेल्प टू डेट ग्रोअर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो वैरायटी है असील, वो हमारे पास मानसून पीक मानसून के टाइम पे होती है, फिर जैसे बारिशों के बादल आ जाते हैं हम जल्दी उसको ख़त्म कर देते हैं। अभी हमने जो इस पे वर्कआउट किया था कि हमें जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं वो चाहिए। अभी जैसे अभी आप मेरे ख्याल में आप अमेरिका से कहीं से हैं, तो हमारे जो कैलिफोर्निया में जो मैजूल होती है टिश्यू कल्चर प्लांट्स, हमें वो चाहिए। अभी हमें कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं टिडाप कर रहा है, नहीं सिंध गवर्नमेंट कर रही है, नहीं हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि उस टिश्यू कल्चर प्लांट की प्राइस इतनी ज़्यादा है
जो उसको एक ग्रोअर नहीं ले सकता। उसको जब तक आप सब्सिडी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो वो एक ग्रोअर नहीं ले सकता। नंबर 1। इससे सिंध एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट भी आया, वो बिलियंस रुपीस का प्रोजेक्ट था। उसमें भी हमने जो सबसे ज्यादा डिमांड की थी, हम दुबई भी गए थे, 2016 में हम दुबई गए थे, वहां पर हमने नर्सरीज विजिट की थी, टिश्यू कल्चर प्लांट्स हम देख के आए थे, थाईलैंड लेके गया, ईरान लेके गया, इंडिया लेके गया, पर सब लेके गए, जो नहीं लाया पाकिस्तान नहीं लाया। हमें ये डराया गया कि भाई राजस्थान में इंडिया ने खजूर लगा दी है, अब भी खजूर चली जाएगी। पर इस साल और लास्ट ईयर हमने जो मानसून देखा है, वो राजस्थान में इतना मानसून होता है तो वहां पर खजूर होना ही नहीं है, वो एक नामुमकिन चीज है। अब हम उस बेस पे भी नहीं जा रहे, हम अपनी कंडीशन जो हमारी खैरपुर की कंडीशन है उसके लिए जब तक हम अपनी वेराइटीज चेंज सर नहीं करेंगे और तब तक कुछ नहीं होगा। और नंबर एक और मेरी पॉइंट है, टिडाप भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जब भी कोई बाहर डेलीगेशन जाता है, जब भी कोई बात होती है तो आप ग्रोअर्स को डिस्करेज किया जाता है। देखें सर, खजूर में ऐसा कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, उसे बनाता ग्रोअर है, उसको मैच्योर ग्रोअर करता है, उसको ड्राई डेट्स भी ग्रोअर करता है, उसको फ्रेश डेट्स भी ग्रोअर बनाता है। अब ग्रोअर को नो हाउ ही नहीं है कि बाहर की डिमांड क्या है। अब वो जब भी हम कहते हैं कि सर हमें कहीं बाहर लेके जाए, हमें मालूम तो पड़े कि वहाँ उनकी डिमांड क्या है। तो ये सारे एक पॉइंट्स हैं जो जिस पे अगर आप तवज्जो देंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिस्पॉन्ड करूँ तो मुझे अच्छी तरह याद है आपने इस पे ट्वीट भी किया था टिश्यू कल्चर पे, मुझे अच्छी तरह याद है, कोई फरवरी के महीने की शायद बात है। मैंने सर यहाँ पे जो ग्रोअर्स उनसे बात की है टिश्यू कल्चर के हवाले से, पाकिस्तान में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं और एक इराकी अमेरिकन है, अभी रिसेंटली उससे एक मैंने मीटिंग भी की है, हमारे सीजी साहब ने भी की, और हमने सीजी साहब खुद हमारे सिंध से उनका ताल्लुक है, तो हमने डेट्स के हवाले से बात की थी, उसको वीजा भी दिया और उससे यही कहा कि जी पाकिस्तान जाके एसेस करे, देखे और टिश्यू कल्चर की कुछ चीजें भी लेके जाए वहां पे उसके हवाले से। बट आई एम नॉट अ ग्रोअर, नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो मैं आजम कदीर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो इस पे कुछ रोशनी डाल दे, और टिडाप में फिर डीजी साहब इस पे कुछ आपके जो डेलीगेशंस के हवाले से उस पर कुछ फरमा दें। आजम साहब काइंडली सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। तो टिश्यू कल्चर है बेसिकली वो है जिसको हम मगजी कहते हैं, जो खजूर का जो 3-4 साल का पौधा है उसके अंदर तकरीबन 1 फुट लंबा होता है जो हम लोग खाते हैं, उसको वो बेसिकली पीस करके बाटल के अंदर पानी में डालते हैं। उसके लिए तकरीबन लैब बना सकते हैं, उसके एक तकरीबन बिल्डिंग के अलावा तकरीबन $1 लाख का खर्चा आएगा। तो आप वहाँ से फिर आप खजूर की तरह तैयार कर सकते हैं। आप एक तरह जो सिस्टम अभी चल रहा है, ली की बेटी लगा रहे हो, कैलिफोर्निया में वही कर रहे हैं, वो अभी प्लांट की तरफ नहीं जा रहे, मिडिल ईस्ट वगैरह में या ईस्टर्न साइड एशियन साइड पे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हाँ जी, ठीक अपना करीम साहब अगर आप अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट सर, मैं अस्सलाम वालेकुम। जवाब दे दूं, एक मिनट आप होल्ड करें। ये हमने सब टेकअप किया हुआ है हमारे ट्रेड ऑफिसर से, हमारे अल्जेरिया में फारूक मेमन साहब हैं, वो भी इस पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन ये टिश्यू कल्चर जो बेसिकली ये है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसके साथ भी हम इंशाल्लाह टेकअप करते हैं। फिर आजकल ये बर्निंग इशू है डेट्स का, तो इस पे हम अपने सेक्रेटरी और सी से भी बात कर लें कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इंशाल्लाह करेंगे जरूर। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं असदुल्ला फुलपोटो बात कर रहा हूँ खैरपुर से। मैं बेसिकली मैं अपने बच्चे के ईमेल से बात कर रहा हूँ, मेरा ईमेल ऑन नहीं हो रहा था। मेरा छोटा सा सवाल है टेडेप वालों से। एक तो हमने जो हमारे भाई हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं निसार खासकली साहब ने आपसे बात की टिश्यू कल्चर के लिए, तो हम तो एक रिक्वेस्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि हमें टिश्यू कल्चर दी जाए। ऑलरेडी हमारे पास टिश्यू कल्चर लगा हुआ है लोगों के पास, बेसिकली वो कामयाब है। उसमें कैलिफोर्निया की भी वैरायटीज हैं और कुछ सऊदी की कुछ और वैरायटीज हैं, तो एक तो उसकी हम रिक्वेस्ट करेंगे। दूसरा जो है, यहाँ से जो हमारी ड्राई डेट जा रही है अपना यूएसए के लिए, वो तो टोटली हाइजीनिक होती है। मकसद के एक उसमें कोई केमिकल प्रोसेस सवाए एक छुहारे के
उसमें तो होता है, लेकिन जो खजूर है जो जिसको फ्रेश डेट करते हैं उसमें तो कोई केमिकली प्रोसेस नहीं होता। तो क्या वो वहाँ पे इसी जो आप क्वालिटी कह रहे हैं उसी क्वालिटी में नहीं जाएगी जो आपने सवेरे बात की कि जो बेसिकली बगैर केमिकल के जो यूज चीजें हो रही हैं? जी फलपुरा साहब बहुत शुक्रिया सर। इस पे जो मैंने आपसे के साथ शेयर किया यूएस एफडीए की रिक्वायरमेंट, जो इन्होंने डीपीपी को खत भी भेजा हुआ है सारी चीज़ों के हवाले से, टेक्निकल जो डिटेल्स होती हैं खजूरों के हवाले से। आजम कदीर साहब जो न्यूयॉर्क में होते हैं, प्रैक्टिकली इम्पोर्ट भी करते हैं पाकिस्तान से। आजम साहब अगर आप इस पर कोई रोशनी डाल दें, जो फलपोटो साहब ने जो भी इशू रेस किया। माइक ऑन कर लीजिएगा आजम साहब। अब जो हमारी खजूर है, जिस तरीके से हम ड्राई करते हैं उसकी शेप वगैरह खराब हो जाती है। जो जो अमेरिका में जो लोग खाते हैं एज ग्रेड बी, वो चाहते हैं कि नाइस लुकिंग खजूर हो। जब नाइस लुकिंग खजूर है तो इंडस्ट्रियल में जाती है। हेलो हाँ जी हेलो जी साहब, मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि जो हमारी खजूर है जो जी पिक की जाती है और ड्राई की जाती है वो तो होती बेसिकली मैनुअल है ना। इस जी हमारे पास कोई प्रोसेसिंग प्लांट है ही नहीं। एक प्रोसेसिंग प्लांट जो सालों से पड़ा है वो कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ गवर्नमेंट पैसे दे रही है, कुछ वो कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप पे कोई लगाए। जो उसको तो शायद अब 10 से 12 साल हो गए हैं, हार्टिकल्चर वालों के पास पड़ा है, वो कहीं इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो ये तो हमारे पास टोटली जहाँ पे भी पाकिस्तान में खजूर हो रही है टोटली मैन्युअली हो रही है और उसको हाथ से ही ड्राई करते हैं। आपको पता है जो तौर तरीका है यहाँ पे, कोई टेक्निकली या कोई प्रोसेस ऐसा हो रहा है ही नहीं मैकेनिकली। तो हमारी खजूर का तो यही हाल है, आप देख रहे हैं खुद। तो तो इसको इसीलिए कैसे ज्यादा इम्प्रूव की जा सकती? इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही ना। कि देखो हमारा जो माल खजूर है जमीन के ऊपर ड्राई हो रही है और सड़कों के पास ड्राई हो रही है, और जो उसके ऊपर मिट्टी गिर रही है उसको उतारना बहुत मुश्किल है। आप लोग जो एक्सपोर्टर हैं वो हम ग्रोवर हैं बेसिकली, एक्सपोर्टर नहीं हूँ मैं, ग्रोवर हूँ। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। जो एक्सपोर्टर हैं वो क्या करते हैं, कपड़ा गीला करके 2-4 दफा लगाते हैं, लेकिन जो मिट्टी है वो निकलती नहीं है। तो जब किसी का लेके खरीद के खाना चाहता है, जैसे मुंह में डालेगा उसको थोड़ी सी रेत आएगी तो वो कहाँ खरीदेगा। तो प्रॉब्लम हमारी ग्रोअर से शुरू होती है कि अगर हम खजूर को दरख्त के ऊपर पकाएं, अगर हम नहीं पका सकते कि हमारी वेदर की प्रॉब्लम है, या फिर हमें इनसाइड कमरे के अंदर सुखाना चाहिए। अगर वो नहीं है, उससे अगला स्टेप है ड्रायर। अगर ड्रायर नहीं है तो कमरे के अंदर पंखे लगाकर और जो दीवारें हैं उसके शीशे लगे हों, ताकि शीशों के साथ जब सूरज की धूप लगेगी और डबल लगेगी और जल्दी पर सूख जाएगी बजाय बाहर सुखाने के। अगर वो करेंगे तो हमारी खजूर जो है हो के लोकल भी अच्छे दाम पे जा सकती है और अमेरिका भी जा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ग्रोवर की इतनी तो वो नहीं है कैपेसिटी की इतनी बड़ा काम कर सके या कोई प्रोसेस या ड्रायर लगा सके। ग्रोवर नहीं कर सकता। आप तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए हेल्प करें। आप तो सारे बैठे हैं, टेटे वाले बैठे हैं, सारे बैठे हैं, इसमें ग्रोवर की हेल्प करें तो इंशाल्लाह हर चीज सही हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। साहब की थोड़ी बात में बढ़ाना चाह रहा हूँ आपके साथ, अगर आप मुझे टाइम देते हैं। अतीक रहमान बात कर रहा हूँ। अतीक साहब फरमाइए सर। हाँ सर, मैं बेसिकली डेट का ग्रोअर भी हूँ और छोटा एक्स्ट्रा आपने काम किया है। जिस तरह ये खजूर को सुखाने के लिए और उसको ड्राई करने के लिए हमारे भाई ने नाम में काइंडली थोड़ा उसका नाम रिपीट करें, जो हमारे लॉस एंजलिस में नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने जो बातें कही है वो काफी अच्छी बातें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम खजूर को री वॉश करके फिर उसको उससे मट्टी बिल्कुल खत्म करके एक केबिन ड्रायर है उससे हम बिल्कुल इसको खजूर को वॉश भी करते हैं, फिर री ड्राई करते हैं। री ड्राई करने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। जापान भी हमारी खजूर जाती है। और माशाल्लाह आपको एक बात में तो अर्ज करूं कि हम ऑर्गेनिक खजूर जो है ना
ऑर्गेनिक खजूर जापान और जर्मनी को भी भेज रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह छोटे लेवल पर है काम, माइक्रो लेवल पर हमने शुरू किया है, लंदन में हमारे साथ पार्टनर है। तो बहुत सारे एफर्ट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, इन्होंने हमारे साथ ताउन किया था, ये केबिन उन्होंने दिलवाया था। इसके बाद हमने रिक्वेस्ट की थी टैडप को कि टैडप भी हमारे साथ इसमें कुछ ताउन करे। उनके पास बहुत सारे फंड होते हैं, जिस तरह EDF एक बड़ा एक उनके पास प्रोविजन है, तो EDF से वो बहुत सारा वो इससे ऐसा काम कर सकते हैं जिससे प्रोसेसिंग में हम तब्दीली ला सकते हैं, वो तब्दीली जो दुनिया जिसको चाहती है। तो अभी भी हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने मिनिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो अपना मिनिस्टर है उनको रिक्वेस्ट की थी, फिर उसके बाद ये मामला TADF ने परसू किया है। तो फिर ये है कि हम चाह रहे हैं कि कम्प्लीटली प्रोसेसिंग एक एरिया, एक ऐसा प्लांट लगाया जाए जिसमें ड्राइंग हो, वॉशिंग हो, उसके बाद फिर सॉर्टिंग हो, ग्रेडिंग हो, इसके बाद फिर पेस्ट और उसके बाद पैकेजिंग हो। तो सिरप के जो है वो एक कंप्लीट एक ऐसा यूनिट लगा जाए खैरपुर और सक्कर के दरमियान, जिससे इस इलाके के लोग यहाँ पे ये जो हमारी खजूर है असील की खजूर, उस पर बड़ा पोटेंशियल है सर। वो आप सब शायद इसको जानते भी होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से नया तरीके से जो है इसको हम बनाते भी हैं। एक हमारे साथ फरमा रहे हैं कि खजूर जो है ना आप हाईवेज के उसमें पाते हैं, बिल्कुल हम करते हैं, क्योंकि मिनरल हमारे पास और कोई है नहीं, ऐसा वसाइल नहीं है ग्रोवर्स के पास। अगर आपकी तरफ से किसी इदारों की तरफ से इसमें आप कोई हमें मदद दे दें, छोटे छोटे ग्रोवर्स को मदद दें, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारी खजूर जो है ना जो तो पूरी दुनिया में एक लीडिंग वो खजूर का किरदार अदा करेगी और रोशनास होगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अब्दुल वहीद साहब ने जिन्होंने फरमाई है कि जो उन्होंने एक अच्छी सी अच्छा इनपुट दिया है हमें, बहुत सारी काफी चीजें जो उन्होंने हमें इनपुट दिए। आखिर सब आपने भी हम आपके शुक्रगुजार हैं और TADF के बिलखुसूस करीम साहब के जो सब हमारे सामने हैं, उनके एफर्ट्स में अभी 13 तारीख को भी उनका यहाँ पे एक सेमिनार है खैरपुर सक्कर के अंदर, उनकी इन्विटेशन मिल चुकी है। तो ये जितने इदारे हैं काम कर रहे हैं, ये सारे इदारे जिस हिसाब से अभी हम शुरू हैं वो काम कर रहे हैं, और जो 3 महीने का करीम साहब ने बताया कि हम रिपीटली वीकली जो है ना मीटिंग्स करेंगे, तो अगर ये मीटिंग्स होती रहेंगी तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई अच्छा आउटपुट न निकले, जरूर निकलेगा। आप सबके एफर्ट्स काबिल दीन हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतने सारे एफर्ट्स लिए हैं। एक बात जो अभी आप फरमा रहे थे आतिफ साहब के, सिल्वर तक हम अमेरिका को खजूर नहीं भेज सकते, कुछ वो मजबूरियां हैं, तो जब ये मजबूरियां खत्म हो जाए तो फाइनली आप प्रेफर कीजिएगा पाकिस्तानी डेट्स को। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं, मैं जिस फार्म से ताल्लुक रखता हूँ, है छोटी फार्म जमींदार डेट्स फार्म प्रोडक्ट्स के नाम से हमारी फार्म है, जो ऑर्गेनिक खजूर वो उसको तैयार करती है और ग्रोवर्स को फैसिलिटेट करती है। हमारे कुछ ग्रोवर्स यहाँ पे मौजूद हैं इस मीटिंग में, वो ये ऑर्गेनिक खजूर ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मुमकिन है, खैरपुर के अंदर ही मुमकिन है, सक्कर के अंदर ही मुमकिन है, ना कि बलूचिस्तान में ऑर्गेनिक खजूर यहाँ पे होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और तैयार करके हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप हमें जरूर याद कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपका इम्कान कोशिश करेंगे। और बाकी यहाँ पे ताल्लुक है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो उनके लिए ग्रोवर्स जितने भी उनके जो फूड जो आप TADF भेज रही है बाहर की दुनिया में, उनमें ग्रोवर्स की नुमाइंदगी लाजम और प्रोग्रेसिव ग्रोवर जो हो उनकी नुमाइंदगी लाजम रखी जाए, तो इससे इंशाल्लाह ताला फवायद बहुत आएंगे। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया और मुझे सुना। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। मेरी एक गुजारिश होगी, आतिफ अजीज साहब, मसूद बलोच बोल रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर बलोचिस्तान सर। जी जबरदस्त। बलूच साहब 1 मिनट सर जी, बस मैं एक जरा कह दूं सबको, TDP से मैसेज एक आया मुझे
जितने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स अगर काइंडली अपनी माइक ऑफ कर दें और अपना ये जूम पर एक ऑप्शन होता है हाथ रेस करने का, ब्लू कलर का एक ऑप्शन आता है ताकि ना आवाज क्लियर रहे, और जबकि माइक ऑन होगी ना तो वो एको भी होता है तो आवाज नहीं सुनाई देती। तो मेरी गुजारिश होगी सारे पार्टिसिपेंट से कि अपनी माइक ऑफ कर दें, एक्सेप्ट वो हाथ जूम पे रेस कर दें ताकि वो फिर TDAP 1 by 1 उनको ना उनके लिए लेता जाएगा क्वेश्चन जो है उनके सर। जी सर, अपना वो जो DG थे बलूचिस्तान के सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी सलाम आतिफ जी अजीज सर। साहब, जी आजम कदीर साहब, टिडेफ के जो हमारे दोस्त बैठे हैं, और इसमें पाकिस्तान कौंसल जनरल में जो कमर्शियल काउंसल्स वगैरह हैं, और मेरे दूसरे जो ट्रेडर्स हैं सेंस है। सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बलूचिस्तान के बारे में मुख्तसरन जो है मैं उसकी जो एरिया अंडर कल्टीवेशन और प्रोडक्शन के हवाले से। बलूचिस्तान में सर जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो मकरान डिवीजन में पंजगुर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के जहां से खजूर ज्यादातर पैदा होती है। तकरीबन कोई 25,000 हेक्टेयर अंडर कल्टीवेशन है तुर्बत डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी जो वैरायटीज हैं उसमें बेगम जंगी, हुसैनी, असील, गोपना, ये 4 वैरायटीज टॉप पे हैं। उससे हट के जो पंजगूर है तकरीबन 22,000 हेक्टेयर पे उसकी एरिया अंडर कल्टीवेशन है, जहाँ पे जो मुजावती, रबई, जवानसोर, शरीफा और कारबा ये टॉप वैरायटीज हैं और कमर्शियली कल्टीवेट होते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ जो खजूर आपने देखा है जो अमेरिकन आपने कहा कि इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ जो एग्जैक्ट जो मुजावती है वो इसी साइज की है और बिल्कुल सॉफ्ट है। जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है इस वक्त एरिया अंडर कल्टीवेशन मोर देन तकरीबन 60,000 हेक्टेयर है। हमारी जो स्टेटिस्टिकल डाटा है वो एक्यूरेट नहीं है, और जो प्रोडक्शन है वो नियर अबाउट 5 लाख मेट्रिक टन है जो बलूचिस्तान से खजूर पैदा होती है। ऑलमोस्ट इन 5 डिस्ट्रिक्ट वी आर कल्टीवेटिंग डेट्स। सर जहां तक बात की गई आजम कदीर साहब ने कि जी जिस तरह उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है खजूर देखा है, राह खजूर तोड़ के सन पे ड्राई कर रहे थे, सर हमारे यहाँ पंजगूर में इस तरह नहीं है। जो दरख्त है उसी पे फुल राइप हो के उसे उतारते हैं। सिर्फ जो हमारे पास मसला इस वक्त चल रहा है कि जो उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग पैकेजिंग वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारी खजूर है उसकी जो फार्मर को प्राइस सही नहीं मिलती है। लेकिन इस चीज पे जो है हुकूमत ने स्टेप उठा लिया है। इस वक्त हम तुर्बत में एक कंप्लीट डेट प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं जिसमें सॉर्टिंग, वॉशिंग, ग्रेडिंग, पिटिंग, पेस्ट, सिरप सब कुछ उसमें आ रहा है, हम लग रहे हैं। इससे अलावा आज के इस साल की जो हमारी PSDP है उसमें पंजगूर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी सेम इसी तरह का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है, और होपफुली विद इन नेक्स्ट ईयर जो है हम इस काबिल हो जाएंगे जो जिस क्वालिटी की जो एक्सपोर्ट एबल वैरायटीज जिसकी ज़रूरत होती हैं और जो उसकी पैकेजिंग, हाइजीनिक कंडीशन, जो प्रोसेस, वो सारे हम इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान से हम बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट कर सकें। सिर्फ इस वक्त जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है जो फ्रेश डेट से खासकर उसका जो कूल चेन है या कोल्ड स्टोरेज, रिफर कंटेनर, उसका मसला है। लेकिन ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं उसमें हमने कोल्ड स्टोरेज भी डाले हैं और रिफर कंटेनर भी डाले ताकि हम फ्रेश डेट्स को बआसानी फ्रॉम द हार्वेस्टिंग टू द मतलब फैक्ट्री, फिर वहां से रिफर कंटेनर के जरिए मतलब फर्ज करें गवादर पोर्ट है या कराची पोर्ट है जहां से जो है एक्सपोर्ट किया जाए उसी हालत में। तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों में हम इस काबिल हो जाएंगे कि जी हम बेहतर खजूर दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकें। मैं आजम कदीर साहब को मेरा नंबर शायद आप लोगों के पास है, शेयर कर लें, बाकायदा मैं उसको सैंपल भी भेज दूंगा। और जहां तक ऑर्गेनिक की बात है, वी आर ग्रोइंग ऑलमोस्ट 100% ऑर्गेनिक डेट, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होती है, खासकर खजूर में, क्योंकि वहाँ जो लोग काश्त करते हैं थोड़ा बहुत फार्म यार्ड मैन्योर इस्तेमाल करते हैं खजूरों में, बाकी कोई पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होती है। इस वक्त हम ऑर्गेनिक काटन पे भी काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में। लेकिन खजूर के हवाले से मैं और चीजें भी बता दूं, यहाँ जो मसला हमारे पास पेश आ रहा है जो हमारी ऑर्गेनिक खजूर है उसकी सर्टिफिकेशन का मसला है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन सेटअप नहीं है। अगर वो हो जाता तो मैं समझता हूँ कि मतलब अच्छी खासी मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकता था और फॉरेन एक्सचेंज इस मद में हुकूमत पाकिस्तान को मिल सकता है। तो ये जो आयल की बात की गई कि सिंध में जो है आयल यूज होता है, हमारे यहाँ कोई आयल यूज नहीं होता है खजूर पे। जो हमारी खासकर 4 वैरायटी है, मुजावती, रबई, जवानसोर, शरीफा,
इनकी साइज तकरीबन ऑलमोस्ट सेम बड़े होते हैं, उसमें सिर्फ कुछ ज्यादा मोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है उनको सब तकरीबन हम मीट कर सकते हैं। जहाँ पे डेगलेट नूर है, मेडजोल है, अंबर, ये जो मतलब अरबिक कंट्रीज से इनकी पैदावार होती है वो हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन जो मैं समझता हूँ हमारी क्वालिटी उनसे ऊपर है, नीचे नहीं है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह जो हमारे ये 2 प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज लग गए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा, जो उसकी एक्सपोर्ट है उसको हम डबल कर सकेंगे। और कोई अगर सवाल आजम कदीर साहब या मसूद बलूच साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कि जितनी आपने अभी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर काइंडली, अगर ये टीडीपी कराची जो हमारा एग्रो फूड डिवीजन है करीम मेमन साहब के थ्रू अगर एटलीस्ट ये मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ इसकी मार्केटिंग भी कर सकूंगा। आजम साहब प्लस ये जो हमारे साइड पे और इम्पोर्टर्स हैं उनके साथ मैं आपको कनेक्ट करवा सकता हूँ सर। तो काइंडली ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे जरूर शेयर करें। मैंने सारी डिटेल्स ये चैट वाले कॉलम में भी डाल दी है। टीडीएपी इज द फोकल एजेंसी, और आप भी मसूद बलूच साहब हमसे अपने नंबर्स शेयर कर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। और दूसरा एक और मैंने अर्ज करनी थी कि हमने ये 1.5 घंटे का सेशन रखा था वेबिनार का, क्योंकि मैंने थोड़ी देर में ऑफिस भी जाना है, तो 8:30 होने वाले। तो कोई क्वेश्चंस हो स्पेसिफिक तो वो जरूर कर लिए जाए। कमेंट वगैरह वो फिर आप टिडाप को भेज दीजिएगा या मुझे भी ईमेल के थ्रू भेज दीजिएगा अगर कोई जहन में सवाल है, तो ताकि टाइम हमारे पास कम हो जाए सर। जी आतिफ साहब, मेरा एक छोटा सवाल है जी, वन तारुफ करवा दीजिएगा। कौन सा? अब्दुल रहीम तरीम बोल रहा हूं जी तरीम साहब फरमाइए सर। मेरा बेसिक खजूर का कारोबार है, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी है। सर ये आवाज एको हो रही है, अगर माइक से ऑफ कर दें एक्सेप्ट जी, जिनका सिर्फ सवाल अब हो रहा है वो ऑन रखें। सवाल मेरा ये था कि मसूद बलूच साहब ने अभी जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत जबरदस्त किस्म का था, जो तरबत में प्लांट लगा है और पंजगुल का नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत बेहतरीन काम है। असल की हमने जो जितने भी लोगों की अपने क्या नाम है राय सुनी, मगर इसमें हमें ये बहुत पसंद आया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में बहुत अक़साम की खजूर है, जो कि अपना क्या नाम है हमारी गैर उसकी वजह से ईरान चली जाती है, वहां से लेके वो कि यहाँ आ जाती है, जिसके बदले हमारे तो ज़र मुबादला इम्पोर्ट डॉलर खर्चा नहीं होता है, फिर भी हमें महंगी पड़ती है। बात यह है कि ये टिडेप का ऑफिशियल बैठा हुआ है, इसके साथ हमने पहले भी कोई बात किया था इधर कोयटा की टिडेप की थ्रू से कि बलूचिस्तान का कोई अपना प्लांट और प्रोसेसिंग प्लांट और पैकिंग प्लांट होना चाहिए। तो ये अगर लग जाए जैसे मसूद साहब ने फरमाया तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान का रोजगार भी मिलेगा और बलूचिस्तान का खजूर जिसने बताया था और आपने निशान दिया था कि अपना अमेरिका का खजूर ये रहा है, इससे बढ़ के हमारे खजूर है। हमारे जो क्लाइमेट है, हमारे जो अब हवा है, ये मैं हमको बादाम से अभी अमेरिकन बादाम आ रहे हैं और हमारा लोकल बादाम में जमीन आसमान का फर्क है जायके में और टेस्ट वगैरह में। तो ये भी बड़ी खुशी हुई, आपके थोड़ा नॉलेज में इजाफा हुआ जो बलूच साहब ने फरमाया कि ये प्लांट लग गया तो इससे तकरीबन काम भी बढ़ेगा, हमारे एक्सपोर्टर का हौसला अफजाई भी होगा और इंशाल्लाह हम भरपूर एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह टीडीएपी के साथ मिलकर करते हैं। जी सर नेक्स्ट किसने करना है सर सवाल? अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम जी मकबूल साहब। मेरा नाम मकबूल आलम है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान मकान से है। जी सर। और मैं बलूचिस्तान डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। जो हमारा रीजन है, हमारे रीजन 2 पोर्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक वही जो दरख्त के ऊपर पकता है, दूसरा नीचे उतारना पड़ता है उसको प्रोडक्ट को। जो केच एरिया है वहाँ पे 1,40,000 टन प्रोडक्शन है और ये हमारा जो रीजन है सारा इंडस्ट्रियल है। दूसरा जो पंजगुर वाला रीजन है वो 97,000 टन प्रोडक्शन है। वो सारा रीजन दरख्त के ऊपर पकता है और वो टेबल फ्रूट है। मगर यहाँ पे हमारी जो फैसिलिटी ना होने के सबब ये चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो बीजे है बेगम जंगी है,
इंडस्ट्रियल है वो अमेरिका मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है या वहाँ पे कोई इंट्रोड्यूस है या नहीं। दूसरी हमारी जो टेबल फ्रूट पंजूर की है मुजाफ्ती, क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस है, अमेरिका मार्केट में इंट्रोड्यूस है? अगर इंट्रोड्यूस है उसकी प्राइस क्या है और उसको किस तरह हम बेच सकते हैं, वहाँ बेच सकते हैं? जी मकबूल साहब, क्विकली टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन सर, जो मसवाती जो टेबल फ्रूट आपने कहा अभी तक अमेरिका से पाकिस्तान के लिए फ्रेश डेट्स जो टेबल फ्रूट है वो अभी तक अलाउ नहीं किया है। वो डीपीपी और यूएसएफडीए के दरमियान कुछ जो सरकारी खतो किताबत होती है, डिटेल्स, डेटा, रिकॉर्ड, जितनी आपने चीजें बताई, प्रोडक्शन, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल शेयर होता है, वो असेस करते हैं उसको, फिर वो यूएसएफडी अलाउ करता है। बाकी जो बेगम जंगी की आपने बात की, आई एम नॉट श्योर, सिंध से ज्यादा हमारी खजूरें जा रही हैं। आजम कदीर साहब इम्पोर्टर है, अगर वो इस पे कोई रोशनी डाल सके, अगर वो बलूचिस्तान से भी खजूरें मंगवा रहे हैं। हमारा जो ज्यादातर वेस्ट कोस्ट साइड पर आ रहा है खजूरें, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए सिंध की हमारी असील और ये खजूरें हमारी आ रही हैं। आजम साहब आपने कोई ऐड करना है इसके अंदर कमेंट सर? अमेरिकन की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो असील होती है, इसलिए कि जो बेगम जंगी है उसमें जो है ना ये वहाँ पे इसको ना ज़मीन पे लगा देते हैं ढेर, उसका जो जूस है वो बाहर निकल जाता है और उसके बाद जितनी भी प्रोसेसिंग पहले हो रही थी वो सारी शक्कर में होती थी, ये बोरियों में लेकर आते थे शक्कर में, तो वहाँ इसकी पिटिंग होती है तो वो उसके अंदर जो सिरप है बहुत कम होता है, वो कस्टमर पसंद नहीं करते। अगर यही खजूर जो है अच्छी तरह जो है जिम्मेदार से लेकर एक्सपोर्ट हाउस में अगर सही क्रेट्स में आती है तो उसकी मार्केट हो सकती है। राइट जी, नेक्स्ट जी कौन सर। जी वास्तान तारुफ जी मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं ट्रेडर भी हूँ और हम खुद ग्रोथ करते हैं खजूर की। सर मेरा सवाल है मिडिल मैन के मुताबिक, उनके यहाँ पर सप्लायर और बायर के दरमियान जो ब्रिज है उसको कवर करने के लिए यहाँ पर मिडिल मैन का रोल बहुत ही ज्यादा और अहम है। तो यहाँ से जो भी मतलब खजूर का कारोबार एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पर मिडिल मैन जो हम एजेंट है खासतौर पर यहाँ पर, तो वहां से वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू अर्न कर देता है क्योंकि यहाँ पर उसकी वो प्राइस कम कर देता है और आगे वो प्राइस हाई पे सेल कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर मिडिल मैन को बहुत ही ज्यादा इंसेंटिव देने पड़ते हैं। तो इसके मुताबिक अगर आप रोशनी डाल दें तो बहुत शुक्रिया। और दूसरा यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज की भी वो भी ज्यादा हो रही है यहाँ पर रीजन में, खैरपुर और सक्खर रीजन में, तो उस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें तो शुक्रिया। सर मिडिल मैन पे तो मैं उस पे क्या कमेंट्स करूं, मैं अमेरिका में बैठा हूं। अगर ये कोई टीडीएपी से या फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन से वहीद साहब अगर कोई इस पे बात करना चाहें सर, वहीद साहब सर। असल में क्या मिडिल मैन का देखें रोल तो हमेशा रहेगा। बात ये कि जो बातें कर रहे हैं हर एक ने वही बात की जो हम लोगों ने जो शुरू में बातें की है कि न्यू वैराइटीज चाहिए, हमें प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। बड़ी अच्छी खबर बलूचिस्तान से आई है कि ऑलरेडी अप्रूवल हो गए और 2 प्लांट लगेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। बात ये कि जो मैंने सब बातें जो ग्रोवर्स के सुने, खासकर जो सिंध से, हम यही देखते हैं कि एक हमारा जो है ना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में कि ग्रोवर किधर घूम रहा है, मिडिल मैन किधर है, एक्सपोर्टर किधर है, पता कि कोई ब्रिज नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा तो हमारे एसोसिएशन जो है उसके आप लोग मेंबर बने, हम फैसिलिटेट भी करेंगे और हम ग्रोवर्स और एक्सपोर्टर और जो मसले हैं उसको लेके हुकूमत की तरफ भी जाएंगे, इसलिए कि ये प्रोविजन मसला अपना सूबों का मसला है। सिंध के अंदर हमें काफ़ी बेहतरी करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो मानसून का मसला आता है जो सबसे बड़ा है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 1 महीने की साइकिल आगे की तरफ जा रही है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा कि आगे जो मौसम देखें, जब बारिश का पैटर्न चेंज होता है तो डिजीज का भी चेंज होता है, हर चीज़ का आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो हमें इस चीज़ों को भी देखना होगा कि वो बलूचिस्तान हो या वो सिंध हो या पंजाब हो, जहाँ भी हो वहाँ पे। मगर ये जो मिडिल मैन पे जो बात की, बात ये कि मिडिल मैन भी लोग जो कहते हैं कि ये मिडिल मैन नहीं होना चाहिए, कट ऑफ होना चाहिए, मैं समझता हूँ मिडिल मैन का भी एक रोल है, वो भी प्ले करें अपना एक पॉजिटिव वे। तो बात ये कि जब तक इसका कोई ब्रिज ना बने आपस में ग्रोवर्स का, एक्सपोर्टर का, मैं समझता हूँ ये हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। बात है कि जितनी भी मीटिंग हुई है इसका एक हमें मिनट्स बनाना चाहिए
اس کا ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے اور وے فارورڈ ہونا چاہیے. آگے ہم نے کیا کرنا ہے, کیا سندھ سے آئی ہے, کیا بلوچستان سے ہوا ہے. اس میں ایک مسنگ ہے ہمارے پاس جو چیز ہے کہ اپنا ڈی آئی خان میں بھی کھجورے ہوتی ہے, تو وہاں سے کوئی ریپریزنٹ نہیں آیا اس میٹنگ میں. تو ہم نے پارٹیسپیشن سندھ کا تو رکھا ہے اور اپنا بلوچستان کا. خان سے کوئی آیا نہیں ہے, کسی نے نہ بولا ہے میرے خیال سے. تو وہاں سے بھی بات سنیں ہم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. ہلو جی مجیب صاحب. سر کیسے ہیں, خیریت سے ہیں سر؟ میرا نام مجیب اللہ میمن ہے سر. جی مجیب صاحب آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی بالکل. اچھا سر, ماشاء اللہ میرا نام مجیب اللہ میمن ہے. میں ندیم کھجور فیکٹری سے میرا تعلق ہے, ڈائریکٹر ہوں. اور ماشاء اللہ اعظم صاحب سے بھی کافی تعلق ہے, اور ماشاء اللہ عبدالکریم صاحب نے بھی کافی اچھی باتیں کی ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو جو 38 کنٹریز میں یہ سیمپلنگ کر رہے ہیں, اس پہ ہمارے کھجور کو جو ہے نا کافی ایک بیک اپ ملے گا, کیونکہ کافی ملکوں میں اس حد تک پتہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈیٹس ہو رہی ہے. تو کچھ پرابلم ہے, جیسے اعظم صاحب نے کہا کہ گروور لیول پہ جیسے آئل ہے مین, بہت بڑا ایشو ہے یہ خیرپور ڈسٹرکٹ کے کھجور کو, کیونکہ آئل ایسی چیز ہے جو بالکل ہی کھجور کو بالکل ایکسپورٹ کے قابل نہیں چھوڑتی ہے. حالانکہ ہم نے 2 سال سے کافی کام کیا اس پہ, بغیر آئل جو ہے نا وہ شروع کیے ڈائریکٹ گروور سے بائنگ کے لیے, تو اس میں کافی اچھا رسپانس ملا. اور ہم کہیں گے کہ اس طریقے کے جو ٹی ڈی اے پی بھی ہے کہ ایک اچھا سلسلہ بنائے کہ گروور کو ایک جو ہے نا وہ مطلب ایک سیکشن ہونا چاہیے کہ کم سے کم جو ہماری ایکسپورٹ کی کوالٹی ہے وہ صحیح طریقے سے بننی چاہیے. ابھی تک ہماری یہ ہے کہ ایز اے ٹیبل فروٹ ابھی تک کھجور نہ ہونے کے برابر جا رہی ہے, اور اس پہ بھی ہم نے 2 سال سے کام کر رہے ہیں. ایز اے ٹیبل فروٹ ہم نے بھیجی ہے. ماشاءاللہ وحید صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں ایگزیبیشن میں کافی, تو ہم اس لیول پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ انڈسٹریل لیول تو ماشاءاللہ جا رہی ہے. بلوچستان کی بلوچستان کی کافی کھجوریں جو ہم بائنگ کرتے ہیں سارے خیرپور میں پروسیسنگ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بلوچستان کی بھی کھجوریں ہم یہی کہیں گے بلوچستان میں اس کی پیکنگ جو ہے نا وہ صحیح بنائے, کیونکہ جہاں تک خیرپور پہنچتی ہے تو اس لیول پہ کھجور کی شیپ نہیں رہتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس اب یہ ہے کہ تھوڑا کافی ٹائم بھی کافی بالکل ہی کم ہے. تو ماشاءاللہ ایوری ون سب ٹیم نے جو کچھ مطلب اپنے کوشش کریں کہ ہم پاکستان کے لیے, اپنی کھجور کے لیے, بلوچستان کے لیے, سندھ کے لیے کوئی اچھے سے جو ہے نا ایک ٹیبل فروٹ کی کھجور لے کے آئیں. جیسے میجول ہو گئی, مطلب کافی ورائٹیز ہو گئی, مطلب کوشش کریں کہ گروور خاص کر کے جو ہے نا اس ورائٹیز پہ کام کریں جیسے ہم ایکسپورٹ کریں. میں نے جانسورو بھی ایکسپورٹ کی ہے, مامن جان صاحب بیٹھے ہیں, تو جانسور میں بھی کافی کام کیا ہے. تو امید ہے کہ شریفہ بہترین ہے پاکستان کی کھجور, میں نے وہ بھی ایکسپورٹ کی ہے اور ربئی بھی ایکسپورٹ کی ہے. تو یہ ٹیبل فروٹ میں آتی ہے. ہماری کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی خیرپور کے ڈیٹس کو جو آئل کا پرابلم ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ مل کے سارے کام کریں گے. تھینک یو, بڑی مہربانی. بہت شکریہ. کلیم عباسی صاحب ہیں کوئی سوال کرتے ہیں؟ کلیم عباسی. جی السلام علیکم. جی واسطہ جی کلیم عباسی صاحب سے. میرا نام کلیم عباسی ہے اور میں لیڈنگ ڈیٹس ایکسپورٹر ہوں پاکستان میں. میں نے سب دوستوں کی باتیں سنی. مجھے سب سے پہلے تو اس کے ٹاپک پہ آنا ہے کہ ایکسپورٹ پوٹینشیل ٹو دا یو ایس اے. لیکن میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اگر ہم لوگ فارمنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. لیکن اعظم صاحب نے بھی کافی روشنی, اعظم صاحب نے بھی کافی اچھی روشنی ڈالی کہ گروورس کے بہت ایشوز ہیں. دیکھیں اگر ہم کمپیئر کریں گے کہ ہماری کھجور جو ہے اگر کمپیئر کریں گے عربین کنٹریز سے تو ذرا سا انفیئر رہے گا, کیونکہ کلائمیٹ کا بہت بڑا فرق ہے. پاکستان میں کلائمیٹ جو ہے وہ اتنا, پہلے تو ہماری جو سوائل ہے وہ ڈیزرٹڈ نہیں ہے. جب ڈیزرٹڈ سوائل نہیں ہے تو ہماری کھجور وہاں درخت پہ پکتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمیں درخت سے کاٹ کے زمین پہ سکھانی پڑتی ہے. اس کے بعد میں ہمارے پاس میں جو ایک اس کے بعد میں اگر جو ایشو ہے سب سے بڑا وہ آئل کا ایشو ہے. دیکھیں اگر آئل میں ہم نے لاسٹ
2 years ago मुजीब साहब थे, उसमें 2-3 लोग थे, हम मिलकर हमने ऑयल कैंपेन चलाई। जैसे अभी एक दोस्त ने बात की कि जो मिडल मैन हैं या जो एक्सपोर्टर हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट लास्ट 3 इयर्स में ये रही थी ग्रोवर्स के साथ में कि अगर आप ऑयल ना लगाएंगे तो आपको प्राइसेस भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि हमें प्राइसेस अगर अच्छी मिलेंगी तो हम लोकल ग्रोवर्स को भी प्राइसेस अच्छी दे सकेंगे। और दूसरी बात ये आती है कि एक्सपोर्ट में सिर्फ हमारी इंडस्ट्रियल ग्रेड ही क्यों जाती है, बाकी जो ग्रेड्स हैं वो क्या उनके प्राइसेस नहीं मिलती मार्केट में, या यूएस में उसका पोटेंशियल नहीं है? यूएस में उसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। बी ग्रेड डेट्स यहाँ पर बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं इंक्लूडिंग मी कि जिन्होंने बी ग्रेड डेट्स भी एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन अनटिल अनलेस हम इसकी अवेयरनेस नहीं ले आते, एक पेज पे वही साहब ने जैसे कहा एक पेज पे नहीं बैठेंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द सीजन चलती रहेंगी। एक्सपोर्टर की अलग डिमांड्स हैं, ग्रोवर की अलग नीड्स हैं, हमारे पास अवेयरनेस लानी पड़ेगी 1 पेज से, ग्रोवर से लेके एक्सपोर्टर तक कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यूएस में हमें ऑयल नहीं चाहिए, यूएस में हमें पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक डेट्स चाहिए। अगर कन्वेंशनल भी चलती हैं लेकिन ऑर्गेनिक डेट्स चाहिए। तो अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, मॉडर्न फैसिलिटीज की बहुत बड़ी कमी है, वैल्यूडेशन की कमी है, पैकेजिंग की डेफिनेटली कमी है। ये सब चीज़ों के लिए जैसे अभी मकबूल जान साहब ने या दूसरे लोगों ने बताया कि बलूचिस्तान में उन्होंने गवर्नमेंट की सपोर्ट से 2 फैसिलिटीज लग चुकी है वहाँ पर, लेकिन सिंध में अनफॉर्चुनेटली सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं। जब सेल्फ डिपेंडेंट है वो इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर इंक्लूडिंग मैं खुद पेस्टिंग और डेट सिरप दूसरी चीज़ों में जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी बहुत सारी लो वैरायटीज हैं जिनको हमारे ग्रोवर्स भैंस कॉलोनीज में बेच देते हैं। अगर वो वहाँ वो वाली खजूर को अगर उन खजूर को उठाकर वैल्यू एडिशन में डेट सिरप में दूसरी चीज़ों में डाला जाए तो उससे अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा के उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जो भैंस कॉलोनीज में और दूसरी चीज़ों में बेची जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को प्रोसेसिंग करके सर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारे पास में सिर्फ कमी है तो हमें अवेयरनेस की कमी है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर एक ग्रोवर प्रोसेसर सब मिल के एक पेज पे बैठ कर दें तो आई थिंक मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टीज हैं एक्सपोर्ट करने में टू द यूएसए। जी मेरा एक सवाल है। जी मेरा नाम जवाद है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। क्रिस्टल इम्पैक्ट्स मेरी कंपनी का नाम है। मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी जवाद साहब आ रही है आपकी आवाज़। जी जवाद साहब। जी एक्चुअली मेरी एक तो सजेशन है, फिर एक रिक्वेस्ट है और एक सवाल भी है। तीन चीज़ें। पहले तो ये एक सजेशन है कि एक तो समीडा ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, ये इसको आप ज़रूर इस तरह की मीटिंग्स में शामिल किया करें, ठीक है। वो जैसे मुल्तान से मेरा ताल्लुक है तो मुल्तान में पल्प का जो है एक प्लांट इन्होंने लगाया हुआ है और हम वहाँ बड़ी लो कॉस्ट प्राइस पे हम उसको वहाँ से पल्प वगैरह बनवाते हैं मैंगो का। इसी तरह सिरप का भी लग सकता है, बाकी जो प्लांट्स की बात की गई है वो भी लग सकते हैं, ठीक है। एक तो समीडा को आप शामिल करें। दूसरा जो है एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि जी एक सवाल पहले मैं कर लेता हूँ कि मुझे कोई आप में से कोई बता दे कि हमारे यहाँ कोई ऐसी लेबॉर्ट्री है जो खजूर या मैंगो के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी वैल्यूज़ हमें बता सके कि उसके अंदर शुगर कितनी है या सिट्रस कितना है, वो हमें एक बता दें, कोई इन्फॉर्मेशन दे दें इस हवाले से। तीसरा जो है मेरी मसूद बलोच साहब से रिक्वेस्ट है कि एक तो वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर शेयर करें। मैं उनसे सैंपल मंगवाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, तो वो हम बलूचिस्तान की जो जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है, आई होप कि तुर्बत और पंजगोर जो है हम लोग विजिट भी करें वहाँ पर। तो काइंडली आप जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी मेरा सर एक सवाल है। जी हेलो जावेद साहब, मैंने शेयर कर दिए चैट पे, अपना नंबर वैसे शेयर कर दिया है। मैं डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बलूचिस्तान हूँ। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, मतलब कभी भी आप फोन करें, इंशाल्लाह हर वक्त रिस्पांस होगी। आप मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं, आपको विजिट भी कराएंगे इलाके का। और जो सैंपल आपको दरकार है, बिल्कुल आप अपना नंबर मुझे फोन करें, मैं आपको भिजवा दूंगा। बहुत शुक्रिया। आतिफ अली साहब मेरा एक सवाल है, अगर आप सुन रहे हैं। जी मोहम्मद जान साहब, मैं बस
सवाल काइंडली कीजिएगा सर, उसके बाद जी मोहम्मद जान साहब। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद जान है। जैसे सारे लोग बैठे हैं दोस्त ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। मेरा सवाल शार्ट है, लंबा चौड़ा मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। जिस तरह जी आप बिल्कुल। जानते हैं एक्सपोर्टर सारे दोस्त बैठे हुए हैं। जिस तरह मुजीबुल्लाह ने जिक्र किया, एक दफ़ा उसने जो आंसर दिया था, हमारे पास 1 लाख टन यानी 97,000 या इस वक्त पंजगूर की प्रोडक्शन और बढ़ भी चुका है। 1 लाख टन टेबल डेट के होते हुए हम सालाना जब देखते हैं हमारी एक्सपोर्ट टेबल डेट में कितना है, मुझे शायद इसका कंप्लीट इल्म ना हो। जहाँ मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ तो हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो उसमें नाकाम हैं इस टेबल डेट को जो है ना एक्सपोर्ट करने में। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या इस मीटिंग की तवसत से ये सारे जो एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं, मैं तो खुद एक्सपोर्ट अब तक नहीं कर चुका हूँ बहुत सारे मुश्किलात के वजह से। क्या इस मीटिंग की तवसत से ऐसा हो सकता है कि हमारी जो 97,000 टन मुज़ाफ़ती ज्वानसो और रबई शरीफा, इसके लिए कुछ किया जा सकता है ताकि फार्मर्स की हौसला अफजाई हो और मुल्क को इसके पीछे जो है ना ज़रा मादरा मिले। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया जान साहब। आई रिक्वेस्ट कि आप ना टीडीपी में करीम बीमन साहब और उनकी टीम से राब्ते में आइएगा, और मेरे कांटेक्ट डिटेल्स भी मैंने सारे इस चैट पे शेयर कर दिए हैं सर। तो सर बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस वेबिनार में। टाइम हमारे उससे जरा थोड़ा ऊपर हो गया है, पाकिस्तान में रात भी हो गई है। आतिफ साहब, मैं जी, मैं रिक्वेस्ट एक चीज बीच में ऐड अप करना चाह रही थी। जी कौन तारुफ करवाइएगा? अस्सलाम जी, मेरा नाम नूरुल ऐन है और मेरा जो ताल्लुक है वो विंडरॉक इंटरनेशनल से है। जी जी विंडरॉक जी बेसिकली यूएस का आप लोग कुछ कर रहे हैं। जी जी मैडम फरमाइए। जी एग्जैक्टली। सो जी बेसिकली हम लोग जो हैं वो डेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। पहले लास्ट हम लोग का जो प्रोजेक्ट था वो बलूचिस्तान में था। सो मोहम्मद जान साहब भी जानते हैं और बाकी भी जानते हैं। और अब हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सिंध में है। सो इट्स लाइक अभी जैसे टिश्यू कल्चर प्लांट के हवाले से बात की गई थी। सो इट्स ओपन कि अगर कोई भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिलके हम लोगों के साथ काम करना चाहे, सो वी आर इनटू इट। और हम लोग जो हैं वो फार्मर और ट्रेडर्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम लोगों ने कोल्ड स्टोर्स भी लगाए हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में भी हम लोग जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसमें भी लगाए हैं और अभी भी हम लोगों ने लगाए हैं। अगर और किसी तरह की भी फार्मर्स को फैसिलिटी चाहिए और उससे जो है वो डेट सेक्टर को जो है वो किसी भी तरह का बूस्ट मिल सकता है। और इफ यू गाइस थिंक कि मतलब इट्स लाइक कि अगर पब्लिक सेक्टर को या फिर प्राइवेट सेक्टर को या गवर्नमेंट सेक्टर को किसी भी तरह से वो हम लोगों के साथ काम करना चाहते हैं तो हम लोग वी आर ओपन टू इट। और हम लोग बिल्कुल उनके साथ मिलके भी काम करेंगे बिकॉज जो बेसिक हम लोगों का कोर मोटिव है वो यही है कि जो फार्मर्स हैं उनको जो है और ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली उनको आगे लेके जाया जाए और स्पेशली जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। सेकेंडली अभी जो एक बात की गई थी उसमें ये था कि मिडिल मैन को बेसिकली वो चाह रहे थे कि कट करें। सो हम लोग इस तरफ भी वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल कि जो मिडिल मैन की तरफ बात है कि हम लोग डायरेक्टली जो है वी कनेक्ट फार्मर पब्लिक ट्रेडर व्हाटएवर, फार्मर को हम बेसिकली जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करवाते हैं टू द बेटर एंड मार्केट, कटिंग द मिडिल मैन। सो अगर किसी भी तरह से आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों की फैसिलिटीज के साथ हम लोग के साथ काम करना चाहते हैं, हम लोग के साथ यू गाइस वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पैड, सो विंडरॉक के साथ काम करना चाहते हैं। सो हम लोग बेसिकली उसमें ये होता है कि मतलब लाइक थोड़ा बहुत आपको उसमें ग्रांट्स होती हैं। सो इस तरह से आप लोग उसके अंदर हम लोगों की मैं फैसिलिटीज बात के साथ करना ले चाहता हूँ। सकते हैं। मैं मोहम्मद जफर जरूर, ये डेरा बहुत जलील आपकी बातें सुन के खुशी हुई कि आप लोग माशाल्लाह काम करें। आई रिक्वेस्ट कि आप टीडीएपी से जरूर राब्ते में आइएगा इस के थ्रू, और जो डीजी बलूचिस्तान रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने जरूर कांटेक्ट डिटेल्स हमसे शेयर कर लीजिएगा। अब हमने सर इसकी एंड की तरफ जाना है। लास्टली कोई डीआई खान से साहब हैं इसमें एक्सपोर्टर या ग्रोअर हमारे साथ? डीआई खान से जी जी सर, एक्सक्यूज मी सर, डीआई खान से मोहम्मद इस्माइल साहब हैं अवेलेबल, शायद उनका डेट का इशू है। मोहम्मद इस्माइल साहब अवेलेबल हैं
ढक्की के ठीक हो मतलब जो हो रहे हैं बहुत। वो अगर हैं कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं मोहम्मद इस्माइल बात कर रहा हूँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। सर ढक्की डेट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे अच्छी वैरायटी है, अपने साइज अपने टेस्ट में यूनिक है। इसका छुआरा जो है वो पूरी दुनिया में जाता है और स्पेशली जो है वो इंडिया में जाता है। और हम मशहूर हैं टीडैप के और उन तमाम दोस्तों के जिन्होंने इधर हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट का मौका दिया। और आज मुझे खुशी हो रही है कि हम घर में बैठ के ऐसे फोरम के ऊपर जो है वो एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सेशंस होते रहेंगे। और जहाँ तक ढक्की डेट की बात है, हमारी डेट जो है वो मेडज्यूल के बराबर साइज़ की है। लेकिन काश कि हमारे लिए प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे हो जाए और ऐसे इक़दामात हो जाएँ कि जिसकी वजह से ये छुआरे की निस्बत हम जो है वो खजूर की तरफ ज़्यादा आ जाएँ। और हमें कोल्ड स्टोरेज जो है इस तरह के सेट हों, जिस तरह अभी जो है वो तुर्बत में मकबूल साहब की मैं चीज़ें देखता रहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों के लिए। और अगर इसी तरह की हम एक्सपोर्ट क्वालिटी खजूर तैयार करनी है तो हमारे जो है सबसे पहले प्रोसेसिंग यूनिट और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज वगैरह में अगर हमें टीडैप गाइड करे, हमारी हेल्प करे। टीडैप की जो टीम पिशावर की है या मीर साहब हैं सक्खर से, उन्होंने हमें जो है वो बहुत फीडबैक दिया है, हमेशा हमारा साथ दिया है और आज भी हम उनके मशहूर हैं। और ढक्की डेट्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की वो क्वालिटी है कि जिसके ऊपर अगर काम किया जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब। ये बस लास्टली मुझे मैसेज भेजा है शाकिर अली राजपूत साहब ने, उन्होंने कहा कि कोई बहुत जरूरी बात करनी है 1 मिनट के लिए। आप हैं हमारे साथ शाकिर राजपूत साहब? अगर नहीं है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा करीम मेमन साहब, डीजी साहब, डीजी एग्रो फूड के वो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें ताकि हम इस वेबिनार को इसके कंक्लूजन की तरफ जाएं। जी अपना करीम मेमन साहब से, डीजी साहब से। थैंक यू साहब, बड़ा अच्छा सेशन रहा, आपने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारे ग्रोअर्स के लिए ये पता चला उन्हें कि अमेरिका में किस तरह वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमें भी काफ़ी नई चीज़ें पता चली हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगले 1 साल में हम, बल्कि कोशिश कर रहे हैं, हम अपने बीजेपी के ऑफिस जो हैं बलूचिस्तान में या केपी में, उनको भी हमने कहा हुआ है कि ये जो है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो है उसके लिए अगर आप कोशिश करें और अपना प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आप जो फॉर्म है वो फिल करके हमें दे दें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से आपकी जो है ना मदद की जाए और कोई कॉमन फैसिलिटी आपके लोगों के एरिया में लगे। तो इस सिलसिले में हमने पहले भी गुजारिश की है और इस सेशन के जरिए हम दोबारा कहते हैं कि आप लोग जो है ना देखें जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपकी मदद के लिए बैठी हुई है और इंशाल्लाह हम आप लोगों की मदद करेंगे और हमारे टीडैप के दरवाजे जो है हमेशा के लिए खुले होते हैं, किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर मदद करेंगे और होपफुली ये इंशाल्लाह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी जो इंडिया का ये सस्पेंशन ऑफ ट्रेड हुई है। तो इंशाल्लाह हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ेगी और हमें बेहतर वैल्यू एडिशन के जरिए बेहतर हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। एक दफा फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और इंशाल्लाह आप हमें किसी भी मार्केट में ज़रूरत है, आप अगर चाहते हैं कि दोबारा इसी तरह के सेशन हो तो आप हमें बता दें, हम दोबारा हमारे ट्रेड ऑफिसर्स को कहेंगे कि वहाँ जो एक्सपर्ट हैं लोग उनसे भी रब्ता करें और इस तरह का सेशन हम अरेंज करें। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच सर। मेरे नंबर सारे हैं तो इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। जैसे वही साहब ने कहा है 1, 2 या 3 महीने बाद दोबारा मीटिंग करेंगे और डीपीपी से मेरी टेडाप के हवाले से रिक्वेस्ट होगी सर, डीपीपी को जरूर अप्रोच कर लीजिएगा फ्रेश डेट्स के हवाले से।
اور انشاءاللہ ہم سب کے ای میلس وغیرہ رابطے میں ہیں, اور یہ ونڈ راک جو کام کر رہی ہے اس کو بھی ضرور ایکسپلور کریں. اور بلوچستان سے جو اچھی کمپنی ملی ہے وہ بہت انکریجنگ ہے. ضرور ڈی جی بلوچستان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ہم سے رابطے میں آئے اور ہم تاکہ ان کی بلوچستان کی ڈیٹس کی یہاں پہ مارکیٹنگ کر سکیں. اور وحید صاحب کا بہت شکریہ, اعظم قدیر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے خیالات سے استفادہ کیا. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. گڈ نائٹ ٹو پاکستان اینڈ خدا حافظ سر, اللہ حافظ.